के मसले यहाँ पर पुलिस के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद। डाइस इज ऑल योर्स। अभी माइक अब सबके पास। आई विल रिक्वेस्ट कि आप पहले अपना तारुफ देकर फिर सवाल कीजिए। हेलो हेलो। Sir, first of all, I will thank to Honorable BJP for giving us this opportunity to have interaction in the public. And we are seeing this is first occasion then a top officer has come forward to have interaction with the public and to know what is the ground reality. Maybe getting different feedbacks from different sources. But public is facing difficulty that has to be shared, that is appreciable. I will start from the, always I have seen the public is criticizing police. But today I will appreciate the police on number of grounds. Why I am appreciating that? I have been practically involved with the police station, in the courts, as well as I'm a senior lawyer in the High Court, from the prosecution side as well as from the accused side. What I have seen that, sir, even when we go to the police station, we will find only 5 police personals, where strength of the police of personnel was 30 years back 5 personnel only. It continues to be 5 persons. Recent incident has taken place in Bhindi. There was a clash between the two groups, and only 5 persons were there, and they are not able to catch those persons, and they have got no input. First of all, there is a technology, there is a lack of manpower. Police finds helpless to nab the culprits, and we always criticize the police before police is able to take any action. The things comes into media. Why this thing comes into media? Media gets a chance to speak against the police. Why? Because the police is lacking infrastructure. And I kindly see Gandhinagar police station, it has got only one vehicle. If one vehicle has to carry a accused to the court, if something happens at the backside, no vehicle is available. There is lack of promotion. Who is doing best job? They are not giving prize post. And there is a race between the police officers to have a best police station. And they are not people friendly. Because the resources are less, infrastructure is not there, and manpower is less. And most of the officers who are at lower rank, they are found in the homes of the big officers. They are working in the kitchen, in their watch and ward. Entire police officers who are working 8 to 10 in strength at their homes, they are required in the police stations. We have armed forces with us. In case of some eventuality, they can assist the local thanas also. They are sitting in the barracks. They have got the expertise also. No doubt they have to carry out the function of anti-terrorism, anti-terrorism acts. But same time, personally I have seen, when a complaint comes before the police station, first of all, police officers say we have to conduct a preliminary inquiry. Whereas in modern technology, as per SOP of Home Ministry, promptly FIR can be registered on-online, through email, through WhatsApp also. But they say they seek time, gain time for conducting preliminary inquiry. And what happens in the meantime? Entire evidence fades away. In some cases, they file FIR selectively. And some cases, they don't file FIR. They say we have to conduct preliminary, violating the Supreme Court judgment of Sarita Kumari. In few cases, there is preliminary inquiry is required. In corruption cases, in women cases, and one is narcotics cases. And the time and again, courts have reprimanded the police department when you seize the narcotics. Why narcotics is lying in the police stations? It is oftenly misused. Why the police department doesn't auction that drugs? Why it is not destroyed? And hats off to our DIG, Mr. Shiv Kumar Sharma, who is public friendly. He is open to everybody. Whenever we have gone to him, he accepted every person with open hands. And I have seen he is not sitting on the chair. He is always standing on the chair and public is before him. We appreciate him. Thank you, sir. Thank you. I think 2-3 questions
are there about manpower, infrastructure, and then policing at the police station level. I will seek response. Yes. देवियों, सज्जनों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे पुलिस के साथी, ये आपने जो सवाल उठाए हैं, ये कुछ हमारी हैं परेशानियां। लैक ऑफ मैन पावर, जो एक आइडियल मैन पावर होता है, वो कभी मिलता नहीं है। तो यू हैव टू मेक द बेस्ट बैलेंस बिटवीन हाउ टू डिप्लॉय योर रिसोर्सेज। और ये कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज है, ये चली हुई है। आप ने मिसयूज ऑफ मैन पावर की बात की है। पिछले जब से मैंने चार्ज लिया है, इस पे बहुत काम हुआ है। अगर आप एसएसपी जम्मू को ही पूछेंगे तो इन्होंने भी तकरीबन हर चौकी में, हर थाने में एक्स्ट्रा मैन पावर तैनात की है, और वो तैनाती कहीं और से निकाल के ही हुई है। आपको मैं ये भी बता दूं, मैंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी से 2/3 लोगों को फारिग किया है। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैंने अपने आप से ये शुरुआत की है और एक काम करते रहेंगे हम। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इवॉल्विंग होती हैं। अंग्रेजी में एक और कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। धीरे धीरे होगी ये लड़ाई इसके सिलसिले भी। जहां तक पुलिस पर्सनल का इंसेंटिवाइजेशन का सिलसिला है, डे 1 से शिव कुमार शर्मा साहब, जोगिंदर साहब चश्मदीद गवाह हैं, मैंने मुख्तलिफ मीटिंग्स में क्लियरली कहा है, जो कोई अच्छा काम करेगा उसको वैसी ही पोस्टिंग मिलेगी। और लोगों से तो मैंने ये भी कहा है कि आप देश के लिए कोई इतना अच्छा बड़ा काम करें, थ्योरेटिकली स्पीकिंग 1 मिनट में आपको आपकी मर्जी की पुलिस पोस्टिंग मिलेगी। थ्योरेटिकली, बिकॉज वो अदरवाइज नहीं हो सकता। लॉज के सिलसिले में बात करते हैं, उससे पहले मैं आपकी ड्रग्स की बात करता हूं। ड्रग्स का पखवाड़ा, डिस्ट्रक्शन का हर साल चलाया जाता है। एंड जम्मू कश्मीर पुलिस में भी जितनी ड्रग्स रिकवर होती हैं, वो कोर्ट की परमिशन से उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये आपने जम्मू जिले में भी ये काम पूरा कर लिया है या मुकम्मल कर दिया है? इसका प्रोसेस चल रहा है सर। पिछले 2 बार हमने ये लगातार चलता है। इसको हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया था प्रोग्राम का ऑनलाइन, और पूरे देश भर में एक साथ ये एक्सरसाइज, ये मुहिम चलती है। ये एनुअल एक्सरसाइज है, ये भी काम होता है। आप बात कर रहे थे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए मैं आईजी जम्मू जोन से कहूंगा कि हल्का सा आपको प्रकाश डालें। नए कानून के तहत पुलिस को इस बात के अख्तियारात दिए गए हैं कि सर्टेन ऑफेंसेस में वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। और आज की तारीख में कानून की इन दफाओं का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कई सारे कंप्लेन जो अपेरेंटली फ्रिवलस लगती है, उनको वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डालती हैं। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उसमें उसका भी एक प्रावधान दिया हुआ है कि कोई भी केस कैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में डाला जा सकता है। तो इसमें एसडीपीओ को अख्तियारात हैं, वो किसी भी कंप्लेन को मार्क कर सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उसकी फाइंडिंग के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि इसमें एफआईआर लगेगा या एफआईआर नहीं लगेगा। और इस बात की सख्त मॉनिटरिंग पुलिस हेडक्वार्टर के लेवल पर होती है, आईजी ऑफिस के लेवल पर होती है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग पुलिस ना करे और जनता को हम न्याय दिला सके। जैसा आईजी साहब बता रहे थे, इसी सिलसिले में मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूंगा। ये जो जितने हमारे नए कानून आए हैं, नए प्रावधान आए हैं, जो काम करने का प्रणाली अब बदली है, इसकी समीक्षा मैं स्वयं, ऊपर से आदेश है राइट फ्रॉम द टॉप, इसकी समीक्षा मेरे द्वारा स्वयं हफ्ते में 1 बार की जाती है। सर, मैं
Sir, I'm Rahul Sahai. I'm chairing Indian Chamber of Commerce, which is a national chamber, which is having chapters in all the states and having chapters in Jammu and Kashmir as well. Sir, पहले तो आपको थाना दिवस की मुबारक और पुलिस आई ऑल्सो एग्री कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है सर, बहुत चैलेंजेस से आप लोग गुजरे हैं और सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट है जो आपने मिलिटेंसी को कर्ब करके रखा है सर, पीस का जो एनवायरनमेंट आपने ट्रेड इंडस्ट्री को दिया है, दैट इज कमेंडेबल। सर बाकी कुलीग्स ने पॉइंट्स कहे, मैं दो चीजें अगर आपकी इजाजत हो कहना चाहूंगा सर। एज इंडियन चैम्बर वी वुड लाइक टू हैव सम ओरिएंटेशन प्रोग्राम on new criminal laws. If you agree, we can collaborate and we can organize that program for public trade industry bodies, and we can invite civil society people there, sir. Then, sir, ICC's program of gratitude for extraordinary service to society for policemen, which is in lines with the आपने उमंग जो देखा होगा, हम वैसा आपको ऑफर करना चाहते हैं सर, अगर आप इजाजत दें तो। इसमें दूसरा सर एक मैकेनिज्म चाहिए कि कोई ईमेल आईडी हो या कोई और मैकेनिज्म हो कंप्लेंट रिडेसल का। इफ यू इंट्रोड्यूस दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। तो ये 3-4 सजेशन सर मैं आपको दूंगा, एंड जब आपको टाइम हो आपसे मिलेंगे सर, आपको प्रपोजल इन दोनों चीजों का दे देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपके सजेशंस नोट डाउन कर लिए हैं डीजीपी साहब ने। मैं जल्दी से आपको ये बताता चलूं क्योंकि इस गैदरिंग का फ़ायदा उठाते हुए कि जो नए क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने लाए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बेहतरीन चीज़ें हैं जो सिटीज़न सेंट्रिक हैं, आवाम को के हित में हैं, उनको मदद देती हैं। सबसे पहले एफआईआर के बारे में मैं सिर्फ 3 बातें आपको बता दूं कि पहले 0 एफआईआर का प्रावधान नहीं था, यानी कि एरिया जहां पे क्राइम हुआ है वहीं पे आप रजिस्टर कर सकते थे, जुरिस्डिक्शन का सिलसिला था। तो अब जो है कानून ये आ गया है कि आप कहीं पे भी किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। वो 0 एफआईआर रजिस्टर होगी और बाद में कंसर्न थाने में उसको भेज दिया जाएगा। तो लिहाजा जुरिस्डिक्शन के दायरा इख्तियार के जो है नाम पर आपकी एफआईआर डिनाई नहीं होगी। ये सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। दूसरी ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आपके किसी भी तरह टेलीफोन से, व्हाट्सएप मैसेज से, ईमेल से जो है आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं और किसी भी थाने में करवा सकते हैं। तीसरी बात यह है एफआईआर के सिलसिले में कि जो विक्टिम है या इन्फॉर्मेंट है जो दे रहा है इतला, तो उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उस एफआईआर की इंफॉर्मेशन की कॉपी मिलेगी। बहुत सारे और हैं, वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो एफआईआर के सिलसिले में ही ये 3 चीज़ें मैं जल्दी बता दूं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने सवाल थोड़े मुख्तसर रखें, ब्रीफ रखें और टू द पॉइंट रखें ताकि मैक्सिमम इंटरेक्शन डीजीपी साहब के साथ हो सके। थैंक यू सो मच। So, I'm Captain Anil Gaur, President Travel Association Jammu. I was also the Chairman, Indian Association of Tour Operators, our national body over here. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम दिया और यहाँ पे हमें सबको इकट्ठा किया एक इंटरेक्शन के लिए। जहाँ तक पुलिस का सवाल है सर, बीइंग इन यूनिफॉर्म आई रियली अप्रिशिएट, आई नो कि क्या चैलेंजेस हैं पुलिस के लिए और किस तरीके से काम कर रहे हैं। पर मेरी सारी पब्लिक सोसाइटी से आज एक गुजारिश है, हम इनको पुलिस वाला ना कहें प्लीज। आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दैट वर्ड। They are policemen, they are men in uniform, and this has to be put across to the media also and to everyone. When you call him a police wala, he is like a ready wala. Is he that? No. So please, keep it in mind next time you address any policeman. He is a policeman on duty or off duty. Secondly, sir, 2-3 बातें हैं। अब बात करूं अगर मैं जैसे गांधीनगर की, क्योंकि गांधीनगर में एक चैलेंज बहुत बड़ा है, पार्क्स बहुत बड़े बड़े हैं, सड़कें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़े अच्छे अच्छे छायादार पेड़ हैं। तो शाम को कोई ना कोई गाड़ी खड़ी होती है, वहां पे लोग शराब पीनी शुरू कर देते हैं। अब आपके पास थाने में इतनी नफरी नहीं है, मेरे को पता है, और मैं हमारे एसपी साहब को भी या डीएसपी साहब को भी इतना तंग नहीं करना चाहते। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, ये अगर एक पेट्रोलिंग का सिस्टम कोई हो कि आपका स्पेशली इस एरिया में, क्योंकि बाकी एरियाज में नहीं है, बाकी एरियाज में इतनी चौड़ी सड़कें नहीं है, इतने बड़े पार्क्स नहीं है,
और दूसरा सर पार्क्स के अंदर जो चिट्टा चलता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने कई बार पुलिस थाने में रिपोर्ट की है और आए भी हैं पुलिस वाले। एक तो जो चिट्टा बेचने वाला है वो स्कूल यूनिफॉर्म में आता है, मतलब कि दूर से कोई देखेगा कहेगा जी ये तो स्कूल का बच्चा है। ही इज द वन हु इज गिविंग दोज पूरीज टू दोज पीपल। सो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक कम्युनिटी पुलिसिंग तो है ही है, बट ये जो एक चीज है सर इसके अंदर जरा थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे इट विल बी वेरी गुड। बाकी ये है कि थाने के साथ में हमारे थाने के जो सारे प्रभारी हैं वो अगर क्योंकि चेंज होते रहते हैं तो एक क्या होता है एक फीडबैक कि कौन कहाँ रह रहा है, क्या है, कौन कोई किस जगह है, क्या हेल्प कर सकता है, वो मेरे को लगता है थोड़ा सा लैकिंग है। क्योंकि ये मैंने आई एम लिविंग हियर सिंस 1968, तो ये मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा एक गैप आ जाता है बीच में। तो यही चंद पॉइंट्स हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सर अगेन थैंक यू वेरी मच एंड रियली वी अप्रिशिएट whatever sacrifice the police is doing and we are with you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी हौसला अफजाई के लिए। आपने बेसिकली दो चीजों को हाईलाइट किया है। एक तो आपने जो आपका ये आपने बताया कि गांधीनगर में जो कारोबार हो रहा है, पीपल ड्रिंकिंग इन कार्स, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू कम डाउन हेविली। I assure you, henceforth, nobody will be found drinking in Gandhinagar like that. Anybody found drinking will obviously be treated as per the concerned sections of law, and the feeling will not be very pleasant for them. Drugs एक reality है जिसको जितना उससे लड़ा जाए कम है। पुलिस की लड़ाई एक है, कानून की लड़ाई एक है। वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं अगली कुर्सी पे, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क है। ड्रग्स हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से आ रही हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान आर्मी ISI कंट्रोल करती है, तंजीमों के थ्रू स्मगल कराती है, स्मगलर्स के थ्रू स्मगल कराती है। तो ये जो चुनौती है, पुलिस तो उसको लड़ेगी इससे और लड़ती रहेगी आखिरी दम तक। सोसाइटी को आगे बढ़ के आना है। जैसा आप कह रहे थे कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे चिट्टा बेचते हैं, पुड़िया बेचते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके जो वालिदैन हैं, उनके माँ बाप हैं, उनका उन पे चाहे सुपरविजन कहें, चाहे कंट्रोल कहें, या कहीं संस्कार कहीं ना कहीं कमी हुई है। तो ड्रग्स की तो लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है बिकॉज ये सोशल ईवल है, और सोशल ईवल के इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई हो नहीं सकती। आई वुड रेट ड्रग्स एंड द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स ऑन एन इक्वल पेडेस्टल इन टर्म्स ऑफ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। दोनों में से इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन पहले होनी चाहिए, कौन दूसरे होनी चाहिए। मैं दोनों को इक्वल पेडेस्टल पे रखता हूं कि ये हमारी चुनौती है और इस चुनौती से हमने डट के लड़ना है। आपने गांधीनगर की बात कही कि ऑफिसर्स आते हैं, बदल जाते हैं। आप 1958 से यहां रह रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट SSP Jammu had to rush for some important assignment. He will be joining us later. मेरी DIG जम्मू, सांबा, कठुआ रेंज से दरख्वास्त है, गांधीनगर में हम शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे कि हमारा जो बीट कांस्टेबल है उसकी बीट में जितने तमाम सीनियर सिटीजन्स हैं, सबसे पहले उनसे राब्ता करना है, उनके साथ नंबर्स एक्सचेंज करने हैं। ये काम हम आज से ही शुरू करेंगे। और जब हम सीनियर सिटीजन्स के साथ राब्ते की बात कर रहे हैं तो उसमें लिटरली स्पीकिंग ये कंसर्न बीट कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल वो सीनियर सिटीजन के लिए या वो सीनियर सिटीजन फैमिली के लिए 1 पॉइंट स्टॉप होगा। कोई आपकी ऐसी कोई परेशानी होगी, कोई ऐसे मसाइल होंगे जो कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पुलिस या क्रिमिनल उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वी विल स्टिल ट्राई टू सी हाउ वी कैन पिच इन टू look after
our elderly figures. So first we will start this, this will be like a pilot project. Let's begin in the right earnest. एक जगह, अब मैं आपको बोल दूं, हम सारे जम्मू कश्मीर में कराएंगे और आप मुझसे अगले एक महीने किसी और थाना दिवस में पूछें कि जी एक भी नहीं हुआ अभी तक, तो गांधीनगर ग्रीन पार्क में एक पुलिस पोस्ट नेबरहुड पुलिस स्टेशन से बना हुआ है, 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है सर। हमें पता है तो सर काइंडली सर आप उसे खोलेंगे तो सर अच्छा रहेगा सर जी, का फीडबैक अच्छा आएगा सर पब्लिक के लिए। सर वो बना तो था तो सर उसको ऑपरेट नहीं किया गया सर। सो काइंडली सर आप उसे अगर विजिट करेंगे देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, अगर सर आप इनिशिएटिव लेंगे तो वो खुल जाएगा, तो उससे सर क्राइम थोड़ा कम होगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। Good morning, sir. I'm Raman Gupta, Managing Director for Pans and Pots in Channi. So, first of all, I want to congratulate you and your entire team for conducting this beautiful session on Thana Divas. Sir, this reminds me of old saying जहाँ पे राजा का दरबार लगता था और लोग एक कॉन्फिडेंस से वहाँ पे आते थे और अपने मसले राजा से डिस्कस करते थे। On the similar notes, I think आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है to bridge that gap between the normal people and the police. I think just few days back, हमारे SP Ajay sir along with DSP and Channi SHO has taken this initiative of inviting all the business community and residents of Channi. वो भी एक बहुत अच्छी interaction sessions रहे हैं. So I would request you to have these kind of a programs on a regular basis than having it just in once in a year or and this approach of this bridging the gap कि जो लोग जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं छन्नी में भी, जैसे आपने ड्रिंकिंग की बात करी, छन्नी में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं शॉपकीपर्स, दैट एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वहां पे भी बहुत ज्यादा है। सो शॉपकीपर्स जो छन्नी के हैं वो कई बार टारगेट किए जाते हैं ये कह के कि आपके यहाँ पे शराब बहुत चलती है। So for this, I think SP sir has already taken very good initiative. SHO sir is taking, but my request is that such kind of programs you should conduct more. So let's imagine, जैसे कि आप कह रहे थे कि कोई ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए कोई हम ईमेल आईडी बनाएं या इस तरह का कोई भी जो सिस्टम है कम्युनिकेट करने का बनाएं। आप बैठे हैं सर, प्लीज सिट डाउन। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग, अब आप ये ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं, can all of you partner with us in this curbing this crime? So then may I make a request कि जब भी आपको कहीं कोई गाड़ी किसी पेड़ के पीछे किसी अंधेरे कोने में किसी चौड़ी सड़क पे दिखती है जो खड़ी है और लोग शराब पी रहे हैं, बिना अपने आप को खतरे में डाले जितना डिस्क्रीटली पॉसिबल हो आप उसकी फोन पे, ये फोन ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है, इसमें कैमरा है, everything has become extremely transparent now. Nothing can be hidden from a mobile phone. Can't you take photographs? I will post this meeting. मैं IG साहब से डिस्कस करूंगा कि इस तरह के फोटोग्राफ्स जो आप गाड़ियों में लोगों के शराब पीते हुए लेंगे वो हमें किस पेज पे या किस मीडिया पे कैसे हमें भेजने हैं, ऐसी हम शुरुआत करेंगे। We will try it. Yes. हाँ जी। नहीं, this will be not meant for Gandhinagar. This will be for the entire Jammu and all proximate areas. हर जगह के लिए करेंगे। फिर आपने जो राजा के दरबार की बात की, let me explain to you, sir. I make no pretensions of being either that. I'm sitting on a dais which is elevated because इतने सारे लोगों से मुखातिब होना है तो आई कांटेक्ट बनेगा नहीं अगर मैं आप ही के वहां बैठूं। Idly speaking, आप सब इस डायस पे होते और मैं नीचे खड़ा होता, बैठा भी ना होता। I'm here to serve you. I'm not here to rule. And I can assure you, ये कहने के लिए नहीं मैं बता रहा हूं। I take my responsibility to the society very seriously. And the idea of interacting with you is not कि आपसे तालियां ही हमें चाहिए हैं। I am interested in actually getting an honest feedback कि पुलिस की जो हमारी कमजोरियां हैं या क्या चीजें हम जो हमारे गैप्स हैं उनको कैसे हम रेक्टिफाई करें so that grievance redressal
the delivery of the various police services to the public, those are improved. Sir, first of all, सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर, पिछले साल सरकार की मदद से और एनआईसी की मदद से सर पुलिस हेडक्वार्टर ने एक सॉफ्टवेयर रोल आउट किया था सर, एक वेब पोर्टल जिसका नाम है pulissunwai.jk.gov.in। इस पर सर कंप्लेंट्स हम इंटरटेन करते हैं सर, जितने भी पब्लिक ग्रीवेंसेज है वो सिटीजन्स आर फ्री टू पोस्ट देयर कंप्लेंट्स ओवर देयर सर, और वो अपने कंप्लेंट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं और उनको टाइमली फीडबैक भी दिया जाता है। दिस सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस सर, शायद जनता को उसके बारे में अच्छी तरह से तो हमें वही एडवर्टाइज करना है, जी सर, करना है, पब्लिसिटी रिक्वायर्ड, राइट, तो ये आपके ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल पे इसको रिपीट कीजिए। सर, यस सर, बताएं सर, आप खड़े थे। Sir, first of all, I would like to congratulate IG Jammu, DIG Jammu, Vivek ji, SSP Jammu, and especially SP South for organizing such an interactive session. Sir, it's an honor and privilege for me to be here amongst all of you. मैं कुछ एक जो ऑब्जर्वेशंस और कुछ एक सुझाव देना चाहूंगा सर। सर, शॉर्टेज की बात तो हर कोई करता है। हमने भी महसूस किया कि आज से पहले पुलिस पेट्रोलिंग मोहल्लों में अलग अलग जगहों पे की जाती थी, क्योंकि तब मैन पावर्स था। आज पॉपुलेशन बड़ी बढ़ गई है, क्राइम का रेट बढ़ गया है। पहले बीट बूथ लगाए जाते थे, 1 थे 2 थे, आज वो 10-10 से 15-15 हो गए हैं, लेकिन मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से वहां पर बूथ की ड्यूटीज नहीं दी जा रही। सर, एज एन मैं अपनी इंट्रोडक्शन में दे दूं कि मैं एज आरटीए एक्टिविस्ट हूं, इसके अलावा मैं इलेक्टेड बॉडी डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। एज एन एक्टिविस्ट सर, मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में एक आरटीए फाइल की थी, ये जानने के लिए कि सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है और कब की है, कि शॉर्टेज कितनी है। इसलिए नहीं कि सरकार को कोसा जाए या सरकार को कंडेम किया जाए, इसलिए क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सी पिटीशन पीआई हाई कोर्ट में, जे.एंड.के हाई कोर्ट में चल रही हैं। मेरा मकसद ये था कि मुझे जब ये जवाब यहां से मिलता तो मैं पीआई कोर्ट में फाइल करता, एज ए सिटीजन जो मेरी ड्यूटी बनती है मैं समझता वो भी करता, लेकिन मुझे वहां से जवाब नहीं मिला। एग्जम्पशन क्लास कोर्ट कर दी गई, सेक्शन 181 में एग्जम्पशन दे दी गई, वो मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं डेफिनेटली कोर्ट में जाता। दूसरा सर, पहले डीजीपी साहब सर बॉर्डर एरियाज में जाके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया करते थे, उनसे भी कहीं ना कहीं आज जो किस वजह से की जाती थी या नहीं की जाती मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता तो आज भी जो बच्चे अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, अगर बॉर्डर एरियाज में वो चीजें इनिशिएटिव किए जाए तो ज्यादा अच्छे होते। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को सर, हर जगह आपकी पुलिस में भी टीम्स हैं, हॉकी की हैं, हर एक्टिविटी होनी चाहिए। वहां फुटबॉल की टीम हो, वॉलीबॉल की हो, हैंडबॉल की हो, सिर्फ आपकी पुलिस में नहीं। मैं समझता हूं आप बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लिख सकते हैं कि पीडीडी है और जो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं वहां पर स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाए और जो बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें उनकी वहां पर सिलेक्शन की जाए ताकि लोग उस तरफ आकर्षित हों। और सर, एक चीज और कहूंगा, आपके सीआईडी डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सर, हम देखते हैं जो लोग चिट्टे में या और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो लोग अचानक विदेशों में जाके अपीयर होते हैं, जिनके कैरेक्टर्स ठीक नहीं है, जिनके खिलाफ एफआईआर लगी है, चिट्टे में पर्चे लगे हैं, वो विदेशों में वहां जाके वीडियो डालते हैं। उन चीजों पे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। और एक आम नागरिक जिसका कोई छोटा मोटा केस है, उसके पासपोर्ट नहीं बनते तो तब लोगों में कुछ होता है, भाई इतने क्रिमिनल्स अगर विदेशों में चले जाते हैं तो हमारा एक पासपोर्ट। सर, एक चीज और मैं देखी थाने में एज एन एक्टिविस्ट, जो चीजें डाटा मेरे पास आया कि थाने में इंडेक्सिंग की जाती है, हर थाने में इंडेक्सिंग की जाती है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और जो रिपीटेड ऑफेंडर होता है। सर, वो इंडेक्सिंग तो की जाती है, एक शख्स जिसका फोटो थाने में लग गया सॉल्व नहीं होता। बचपन में गलतियां करते हैं, जवानी में गलतियां करते हैं, लेकिन जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, जिनके बच्चे हैं, आगे ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन के ग्रैंडसन है, कम से कम उनको एक डिग्निफाइड तरीके से रहने की हक होना चाहिए। उसके एक बार जो नॉर्मल था उसको रिमूव भी किया जाए, क्योंकि इंडेक्सिंग है तो डी इंडेक्सिंग भी जरूर होनी चाहिए। एक चीज और सर, कोई छोटे मोटे केस में, कोई एक्सीडेंट केस में या छोटा मोटा केस, किसी का केस कोई आता है, जब कोई वेरिफिकेशन आती है, हर बार उसको कहा जाता है तेरा केस है, तू जजमेंट लेके आ। सर, आज अगर कोई केरला में, तमिल में कोई क्राइम करता है तो उसका वो ऑनलाइन सारा डाटा है, तो ये एक बार उससे जजमेंट लेके उसको खत्म कर देना चाहिए। हर बार उसको बार बार नहीं बुलाना चाहिए, भाई तेरा वो केस था, फिर वो जाता कोर्ट में, भाई कॉपी दीजिए, मुझे बुलाया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन में, मुझे उसको खत्म करवाना है।
तो वो ये चीजें कहीं ना कहीं की जा सकती हैं, लोग सफर करते हैं। सर एक लास्ट में, सर एक जो एनडीपीएस के केसेस तो बहुत, ड्रग्स का मेनास बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, और बड़े बड़े अच्छे हमारे पास इस वक्त अफसर की टीम बड़ी अच्छी, विवेक सर जैसे सबने कहा कि इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लोगों में दहशत नहीं है कि पुलिस के पास जाएं। बड़े अजय सर बैठे हैं, बड़े फरागदिली से लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं ताकि क्राइम प्रिवेंशन के लिए कुछ किया जा सके। सर एनडीपीएस के केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है, यह कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग फैक्टर है। हम जो देखते हैं इसका जब तक परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, तो लोगों में इसका भरोसा नहीं जाता भी क्या बात आखिर, अगर कोई चीज पकड़ी जाती है तो बाद में वो उसकी एक्विटल क्यों हो जाता है। बस यही मेरी सबमिशन थी सर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर जरूर। सर आपने जितने भी पॉइंट्स उठाए, मैं किसी भी पॉइंट पे नहीं कहूंगा कि आपने एग्जैजरेट किया या गलत किया है, ये रियलिटीज हैं। और इन रियलिटीज पे जैसे आपने कहा था बॉर्डर एरिया में भर्ती होती थी, अब ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी कहिए, ड्यू टू इक्विटेबल सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कुछ चीजें जो पुराने जमाने में होती थी उनको थोड़ा पारदर्शिता लाने के लिए तब्दीली आ गई है उनमें। ड्रग्स तो मैं बता रहा हूं, ड्रग्स मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जितना कि टेररिज्म, और इसमें हम ढिलाई नहीं करेंगे। जो आपने बताया कि एनडीपीएस के केसेस में अक्सर एक्विटल्स होते हैं, वो भी एक रियलिटी है, और इसकी हमने ऑलरेडी समीक्षा करनी शुरू की है और इस पे भी काम चल रहा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन या इस तरह के जॉब वेरिफिकेशन की जो बात आपने कही है, ये भी डेफिनेटली एक सोचने की चीज है। और जहां तक आपने डी इंडेक्सिंग ऑफ क्रिमिनल्स हु आर नाउ एल्डरली पीपल, एज्ड पीपल, इसके लिए आई थिंक फॉर अ टेस्ट केस हम जम्मू सिटी के किसी न किसी थाने से ही शुरू करेंगे। पुराने जितने इंडेक्स्ड केसेस हैं उनको देखते हैं, एक एक आदमी को एट अ टाइम लेके एक एक फर्क चेक करेंगे और कितने अफराद इससे निकाल सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। एक यस मैम। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। सर मैं सरपंच अमरजीत कौर फलाई मंडाल एरिया से, क्योंकि मैं रूरल एरिया से हूँ तो मैं बात भी रूरल एरिया की ही करूँगी। पहले तो मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगी थाना दिवस जो आज आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको और आपके एंटायर टीम को। सर अब रूरल एरिया की बात करें, क्योंकि यहाँ सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ी हूँ तो वो रह जाता है कहीं ना कहीं पॉइंट। आपको पता है सर, हम लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में वहाँ पर क्या होता है कि वायरिंग्स जो है हमारी पुअर वायरिंग्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है। क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वायर्स होती हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती हैं। जो हमारी क्रॉप होती है लाइक पैडी हो गई या वीट वाली क्रॉप हो गई, जब वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऊपर से सन रेज इतनी ब्राइट होती हैं कि वो हस्क बन जाता है। जैसे ही वायर ब्रेक वगैरह होती है तो वो क्या होता है, उसमें आग लग जाती है, लोगों की जो क्रॉप है टोटली खत्म हो जाती है। या फिर हमारे कुछ गुज्जर भाई हैं जो क्या करते हैं, पुराली जो होती है उसको इकट्ठा करते हैं पूरे 2-3 महीने अपने जानवरों के लिए, उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो जल जाती है तो उन्हें बड़ा नुकसान होता है। क्या मैं सर इस मौके पे यही डिमांड करूंगी कि हमारे एरिया में, फलाई मंडाल एरिया में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमें दी जाए, क्योंकि गाड़ी अवेलेबल होती है, गांधीनगर से होती है, बट जब तक सर वो सिटी से रूरल एरिया में जाती है तब तक नुकसान हो गया होता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं होती है, वहाँ पर ट्यूबवेल्स अवेलेबल हैं, बट एक गाड़ी आप हमें दे दें तो शायद हमारा एरिया बहुत अच्छा चलेगा और लोगों का भी सुधार होगा। एक और चीज़ सर, वैसे तो फलाई मंडाल एरिया की कोई कंप्लेन होती नहीं है, बहुत पीसफुल एरिया है, वहाँ की जो टीम है बहुत अच्छा काम करती है। हमारी एसआई साहब की अप्रिशिएट करते हैं हम उनको कि वो ऐसा होने नहीं देते एरिया में। बट सर थोड़ी सी मैं यही बोलूँगी, सभी ने बोला कि मैन फोर्सेस कम है, क्योंकि एक एसआई साहब कितना ही काम करेंगे, एरिया बड़ा है। अगर आपको पीसफुल बनाना होता है तो जगह जगह पे पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, नाइट में भी। थर्ड पॉइंट सर मेरा ये है
कि अगर हम ड्रग की बात करते हैं तो सर मुझे लगता है कि हम लोगों को पकड़ेंगे, उनको बताएंगे, लोग शेम फील करते हैं बताते हुए भी कि हमारी फैमिली में कोई ड्रग ले रहा है। इससे बेटर सर अगर आपका डिपार्टमेंट कोई टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए एरियाज में, और मैं सर ज्यादा एरिया की बात नहीं करूंगी, फलाई मंडाल की ही करूंगी क्योंकि मैंने वहीं रहना और मैं रहती भी वहीं हूँ। वहां पर एक स्टेडियम है, आपके डिपार्टमेंट से वहां पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो, फुटबॉल हो या क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर, तो सर शायद कहीं ना कहीं ये पहल होगी हमारी कि हम ड्रग के अगेंस्ट फाइट करेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने सुना एक फिजिकल वर्कआउट होता है जो ड्रग को हरा सकता है। तो सर मेरा यही पॉइंट है, अगर आपको अच्छे लगे तो सर इस पे जरूर आप ध्यान दें। ज्यादा नहीं बोलूंगी। जय हिंद, जय भारत। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सरपंच हैं, लिहाजा इलाके पे आपकी पूरी ग्रिप है, और सरपंच या हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, इससे बड़ी चीज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकती है। आपने जो पॉइंट्स बताए फायर ब्रिगेड का, फायर ब्रिगेड टेक्निकली उस पर मैं आपको कोई आश्वासन दे नहीं सकता, लेकिन ये बात जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको मैं जरूर स्ट्रेस करूंगा, किसी तरीके से फायर ब्रिगेड का एक गाड़ी आपको मुहैया कराई जाए रूरल एरिया के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये पहले भी बात की थी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सरदार जी ये बता रहे थे कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, खासतौर पे जितना ये यूथ है या जो इलाका ड्रग प्रोन है वहां होनी चाहिए। अब एक्चुअल में मजे की बात क्या हो जाती है, आप खुद मान रहे हैं क्राइम बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, मसाइल बढ़ गए, शहर बड़े हो गए, और आपने कहा कि पुलिस की शॉर्टेज है। तो पुलिस की तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम हर साल हमारे जितने भी कई तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं हम कराते हैं। जैसे अभी जनवरी में कठुआ में क्रिकेट टूर्नामेंट था, एक हमारे शहीद के नाम पे वो रखा गया था, उसमें मेरा ख्याल है 15-20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये टूर्नामेंट्स कराना बड़ा जरूरी है, लेकिन क्या होता है जब पुलिस कराती है, लिटरली स्पीकिंग वो एक दिन का एफर्ट है या 2 दिन का या 4 दिन का। अब आप अगर ये सोचें कि पुलिस रोज आके नौजवानों को खेल खिलाएगी तो पुलिस अपना काम कब करेगी। अब ये हमें, जैसे आप सरपंच हैं, आप जैसे जो ग्रास रूट्स के लीडर्स हैं, मोतबार लोग हैं, आप लोगों ने कोई तरीका बनाना है कि हमारी गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में या इवन शहरों में आउटलाइंग एरियाज में कैसे कुछ हमें जमीन ऐसी देखी जाए जहां और कुछ ना हो, उसको साफ सुथरा करके वॉलीबॉल कोर्ट का ही काम शुरू कराया जाए। पुलिस सपोर्ट करती रहेगी और हम आपके साथ इसमें जुड़े रहेंगे, बट ये चैलेंज है, इसको भी हम देखते हैं मैम, इसमें बेस्ट पॉसिबल कैसे इसको आगे ले जाएं। सर पहले तो मैं एक मिनट मैम, आप बताएं पहले। सर आज थाना दिवस की आप सबको बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम संध्या गुप्ता है और मैं वुमेन क्लब मेरी पहचान की फाउंडर हूँ। सबने अपने अपने क्वेश्चन रखे, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है सर आप सबसे थोड़ा अलग है। महाभारत के युधिष्ठिर जो थे वो रात को बिना यूनिफॉर्म के सर निकला करते थे, बिना किसी की सपोर्ट और बिना किसी सिक्योरिटी के, और जगह जगह जाके वो अपने नागरिकों का हाल चाल पूछा करते थे। सर मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि मैंने सुना है कि आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं, क्या ये सत्य है? क्या आप भी इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बिना यूनिफॉर्म के, बिना सिक्योरिटी के आप भी रात के अंधेरे में निकलते हैं ताकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो स्वर्ग की तरह सुंदर हो जाए? क्या ये सत्य है सर? और कोई सवाल मैम? सर यही सवाल था मेरे मन में कि मतलब मैं आपसे ये जरूर पूछूं, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि आप सब लोग, आपकी टीम ऐसा ही कुछ करती है। जी, थैंक यू। इसमें कोई शक नहीं मैम। अगर हमेशा वर्दी में लोग निकलेंगे और पुलिस की जो गाड़ी जिसको विजिबली दिखती है उसमें निकलेंगे तो नहीं पता लगती चीजें, और ये काम बीच बीच में होता है, और जरूरी नहीं कि रात को, कई बार ये दिन को भी होता है। हमारे खासतौर पे डीआईजी जम्मू रेंज
ये अक्सर ऐसे अपनी निजी गाड़ी में निकलते हैं और चेक करते हैं। ऐसा होता है मैम। सर पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप हमारे बीच में जहां आए और ये इतने सीनियर सिटीजन हैं इनके बीच में आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो मेरा ये सवाल है कि बढ़ती हुई चैलेंज जो ट्रैफिक की है, इतनी परेशानी आ रही है कि आए दिन छोटे छोटे रूट जो हैं अंदर जो लिंक्स रोड हैं उन पे भी इतनी गाड़ियां हैं कि किसी इमरजेंसी किसी को आगे पीछे जाना है वो जा नहीं सकता। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो काफ़ी देर से रोड पे पड़ी हैं, उनको कोई ना उठा रहा ना कोई आगे पीछे ले जा रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। रोड पे कब्जा किया हुआ है। तो मेरा क्या मानना यह है कि अगर जनाब उस पर थोड़ी गौर फरमाएं तो रोड जो है हमारे जरा थोड़े खुले हो जाएं ताकि आने जाने में किसी को कोई दिक्कत पेश ना आए। दूसरी बात यह है कि जैसे ड्रग्स पे जो बात आई थी, तो ड्रग्स के मामले में सर इतना बड़ा ड्रग्स जो नौजवानों की जान चली गई है, तो इसमें जैसे आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग जो आपकी सरबराही में हो रही है, तो मेरा मानना है कि अगर इसी तरह हर इलाके में पब्लिक मीट पुलिस मीट जो होती है वो अगर शुरू हो जाए दोबारा, और जैसे मैं तो डिगाना से बिलोंग करता हूँ, बहुत बड़ा एरिया है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे एरिया में पब्लिक मीट हो, वहाँ के लोग बहुत सारे लोग और भी हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो वो उनके सामने बात रखें, वो आप तक पहुँचेगी और उसको आप कोई ना कोई उसका हल निकालेंगे। थैंक यू सर। सर आपने जहां तक ये बात बताई है थाना दिवस, एक तरह से देखा जाए मैं पहली बार आया हूं गांधीनगर में थाना दिवस में, बट ये थाना दिवस की जो ये प्रतिक्रिया है ये हर जगह चलती रहती है। ये काम यहाँ कहीं ऐसा थाना नहीं है जहां थाना दिवस नहीं होता। आप डिगियाना की बात कर रहे हैं, जब भी नियर फ्यूचर में मौका मिलेगा जहां भी कोई थाना दिवस हो रहा होगा मैं उसमें भी जाके शिरकत करूंगा। आप लोगों से मिलना है, आपकी बातें सुननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप ये ट्रैफिक की सिलसिला बता रहे हैं, डेवलपमेंट पॉपुलेशन का इजाफा, उससे गाड़ियों का इजाफा होता ही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है वो कई बार कैचअप नहीं कर पाता। इसमें पुलिस की तरफ से हम कैसे, आप जो बोल रहे हैं ये लावारिस गाड़ियां खड़ी हैं या और किसी ने एनक्रोचमेंट की है, कैसे उसको एक सरल तरीके से इन सारी चीजों को सुधारें बिना किसी कॉम्प्लिकेशन में पड़े, इसकी भी हम चेष्टा करेंगे। गुड आफ्टरनून सर, मैं पवनीत को जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगी जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी। और सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि हम वुमेन्स को एक वुमेन सेफ्टी एक्ट चाहिए। आज हमारी बच्चियां घर से बाहर जाती हैं और हमें डर रहता है कि शाम को हमारी बच्ची घर वापस आएगी या नहीं आएगी। इस पे हमें इतना डर है। आज हम बच्ची को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजते हैं और पूरा दिन ये वॉच करते हैं कि हमारी बच्ची घर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ड्रग्स और ये आज वुमेन सेफ्टी, ये सबसे बड़ा मसला है जो आज हमारे यूथ को अंदर से खत्म कर रहा है। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे तो नहीं दे पाएंगे। आज सबसे पहले हमें अपनी बेटी बचानी है। जब तक हमारी बेटी बचेगी नहीं तो हम उसको पढ़ा नहीं सकते। इसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं सब ओवरऑल बात करूंगी। आज यहाँ पे मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है। आने वाले हमारा जो वुमेन इंटरनेशनल डे है, इसमें मैं इनकी मुबारकबाद देती हूँ, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें कोई ऐसा फीडबैक मिले जो हम अपनी बच्चियों को बचा सकें। आज सर ट्यूशन सेंटर के बाहर सबसे ज्यादा जो ड्रग सप्लाई होता है वो टीनेजर्स को दिया जाता है। और वो कहां दिया जाता है? आज ट्यूशन सेंटर्स के बाहर, स्कूल्स के बाहर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां पे भी पुलिस को देखा जाए कि जो हमारे बच्चों को ड्रग्स देते हैं, आज हम अपने बच्चों को सर बचा नहीं पाएंगे। पढ़ाना तो वो दूर की बात है, आज हमारा बच्चा बचने की हालत में नहीं है। आज हर एक माँ के आंसू, आप कहीं रूरल एरिया में किसी भी एरिया में चले जाएं, सर वुमेन्स हमारे पास आती हैं, सिर्फ उनका एक ही मसला होता है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को बचा सकें। मैं आपसे बीइंग ए वुमेन एक रिक्वेस्ट करती हूं कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को बचाएं। ड्रग्स का सर
आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप अकेले नहीं, हम पब्लिक आपके साथ हैं। जहां पे भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। मैं मुबारकबाद दूंगी एसपी साहब अजय शर्मा साहब को। इन्होंने एक यहाँ पे रामपुरा में हमारे कहने पे एक यहाँ पे विजिट किया। सर आप बिलीव करोगे, इन्होंने वहां पे जब विजिट किया उसके बाद काफी सारे लोग वहां पे ड्रग्स बंद कर दिया, मगर उस दिन रात को मेरी दोनों गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। किस लिए? क्योंकि मैंने वहां पे ड्रग्स के कारण वहां पे ये शिकायत दर्ज की। आप अगर हम आम लोग इस पे आगे आना चाहते हैं तो हम अपनी भी सेफ्टी चाहते हैं, क्योंकि हमने भी अपने बच्चों को देखना है। इसीलिए मेरा एक ही है सर, सबसे दो ही मेरा, एक तो ड्रग्स, एक वुमेन सेफ्टी एक्ट। थैंक यू सर। ड्रग्स का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको भी मैं उतनी ही बड़ी चुनौती मानता हूं, और ये भी मेरा उतना ही बड़ा टारगेट है जितना टेररिस्ट हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें जो भी हमारे साधन हैं उनको कैसे हम मोबिलाइज करके रिसोर्सेज को लगा के ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे, करते रहेंगे। विमेन सेफ्टी की आपने बात की, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं मतलब आपने ये बात की है, मुझे मालूम नहीं कि बाकी इस मीटिंग में, ये स्थाना दिवस में जो जितने भी ये शख्सियतें आप आई हैं, आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन अगर इसमें 10% भी सच्चाई है तो हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। बड़े शर्म की बात है। इसका मतलब है कि सोसाइटी में हमारे बच्चों के संस्कार, उनका कल्चर, कहीं ना कहीं बहुत चीजें डिफेक्टिव हो रही हैं। विमेन सेफ्टी के लिए जो आप ये गर्ल चिल्ड्रन बता रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जिनको कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, स्कूल से आना जाना पड़ता है, उनके लिए क्या टूटी साहब हम कोई एक स्पेशल ऐप तैयार करें? बहुत सारी स्टेट पुलिस फोर्सेस ने इस तरह की सेफ्टी एप्स बनाई हैं जिसमें कुछ भी उनको आभास हो, कोई परेशानी हो, इमीडिएटली वो अलर्ट कर देती हैं, SOS कॉल। कुछ हम ढूंढते मैम, इसका तोड़ ढूंढेंगे इसका तोड़। नमस्कार सर, मैं सतपाल सपोलिया, सोशल वर्क। सर इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा सर कि नए कानून में विमेन सेफ्टी और उससे रिलेटेड कई सारे नए प्रावधान लागू किए गए हैं सर, जिसमें पुलिस को बाउंड डाउन किया गया है कि विमेन रिलेटेड केसेस का तफ्तीश वो जो पहले अनंत समय तक चलती थी उसको 60 दिन के अंदर मुकम्मल करके अपनी चार्जशीट केस में पेश की जानी है। तो इस पे विमेन एम्पावरमेंट में सरकार भी काफी सीरियस है और हम लोगों के लिए बिल्कुल ये पत्थर की लकीर है कि हम जितने भी विमेन रिलेटेड केसेस जो हम दर्ज कर रहे हैं उनको 60 दिन के अंदर हम उसको क्लोजर तक ले जाएं। और ये आप सभी का राइट है, यदि तफ्तीश 60 दिन के अंदर पूरी नहीं होती है तो यू हैव ए राइट टू एजिटेट बिफोर अस। आप सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में लाएं, और हम लोग इन सभी केसेस को बिल्कुल अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। आईजी साहब ने जो 60 दिन की बात की, इसमें आपको भी मैं ये अवगत भी करा दूं कि जब आईओ 60 दिन के अंदर केस के होने के 60 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल करेगा, चालान पेश नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर मैं सतपाल सपोलिया सर, गांधीनगर का सोशल वर्कर हूं। मैं आपके नोटिस में ये लाना चाहता हूं कि पिछले 3-4 महीनों से हम ये देख रहे हैं, हमारे जो जुरिडिक्शन है, एसपी साहब हमारे अजय शर्मा जी हैं, इनकी जुरिडिक्शन में चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता, मेरे ख्याल पेपर आप सब लोग पढ़ते हैं, हर दिन कोई। अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं आपसे कह सकता हूँ, आप कह रहे इनकी जुरिडिक्शन में चोरियां हो रही हैं। वैसे ये भी कह सकते हैं आप कि हमारे इलाके में चोरियां हो रही हैं। सर देखिए, मैं आपको वैसे ही ऑन अ लाइटर नोट, मैं आपसे ये भी एक बात साझी करना चाहूंगा। पुलिस बिना पब्लिक की सपोर्ट के, बिना आपके आशीर्वाद के काम नहीं कर सकती। तो ये जो लड़ाई है, चाहे ये चिट्टे की है, ड्रग्स की है, चाहे टेररिज्म की है, चाहे चोरी की है, चाहे ये जो नौजवान लड़के बदसलूकी करते हैं बच्चियों के साथ, ये सारी लड़ाई हम सब ने इकट्ठे लड़नी है। और हम नहीं कहेंगे किसी इसकी जुरिस्डिक्शन उसकी जुरिस्डिक्शन, ये सब हमारी जुरिस्डिक्शन समझे नहीं सर, मेरी मैं बात करना समझ गया। मैं वैसे ही ऑन अ लाइटर नोट सर पूरे जम्मू में है, लेकिन मैं इनका ये कहना चाहता हूँ अजय शर्मा साहब की जो जुरिस्डिक्शन है इसमें भी चोरियां हो रही हैं। हालांकि ये बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, हम इनसे इंटरेक्शन करते रहते हैं। बड़ी बार इंटरेक्ट किया, पुलिस पब्लिक मीटिंग भी हमने की, ऑर्गेनाइज की है, यहाँ पहले होती थी लेकिन अभी काफी देर से नहीं हुई है। लेकिन मैं ये आपके नोटिस में जरूर लाऊंगा कि भाई ये जो दिन दिन चोरियां बढ़ रही हैं,
हर आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे कुछ भी है। वो घर में भी अपने आप को सेफ नहीं समझता, बाहर भी सेफ नहीं समझता। एक बात अगर आप मुझे अनुमति दें सर, तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको हमारी जो पुलिस की जितने भी ये तमाम केसेस होते हैं, इसमें जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन निकलती है उसके मैं आपको बता रहा हूं तार कहां कैसे बनते हैं। जी सर, जी सर। बैठिए सर, बैठिए प्लीज, खड़े मत रहिए। जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास जितनी ये छुटपुट चोरियां हैं, मतलब हम बड़ी चोरी या बैंक डकैती की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट पेटी थेफ्ट्स, छोटी मोटी चोरियां। वो तकरीबन जितनी छोटी मोटी चोरियां हो रही हैं, जब भी वो लोग पकड़े जाते हैं, वो पता कौन निकलते हैं? ड्रग एडिक्ट्स। आप गैंगस्टर्स को देखो, उनके खिलाफ भी जब सख्ती की जाती है, एक्शन लिया जाता है, जो पकड़े जाते हैं वो कौन है? वो भी हैं ड्रग एडिक्ट्स। तो ये चाहे छोटी मोटी जो चोरियां आप बोल रहे हैं कि बहुत बढ़ गई हैं, रियलिटी है। और ये जो इवन गैंगस्टर्स का इशू है, नशे का इस्तेमाल भी करते हैं, पार से मंगवाते भी हैं, उसकी खरीद फरोख्त भी करते हैं। एक ये कठोर सच्चाई है। और इसीलिए मैंने कहा, शुरू में ही कहा सर, कि मेरी लड़ाई में जितनी टूल टेररिज्म को दी जाएगी उसके खिलाफ जंग लड़ने की, उतनी ही ड्रग्स के लिए भी है। और कुछ सवाल सर? सर इसके साथ मैं यही जोड़ना चाहूँ, मेरा ये मतलब नहीं था कि इनके एरिया में नहीं, मैं तो क्लैरिफाई कर दूं सर, मैं भी क्लैरिफाई करता हूँ। मैंने वो लाइटर नोट पे कहा था, वो मैंने लाइटर नोट पे कहा था, वो निजी नहीं था। निजी नहीं सर, ऐसा है, इनकी जुरिडिक्शन बहुत बड़ी है। मेरे दिमाग में ये बात थी कि इनकी जुरिडिक्शन बहुत बड़ी है। जम्मू में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जुरिडिक्शन इनकी है। सर आपकी जुरिडिक्शन छोटी करनी पड़ेगी हमें। तो जुरिडिक्शन का मतलब है एरिया, इसलिए वहां इस तरह की बातें हो रही है। बाकी ये हमारे बड़े होनेस्ट ऑफिसर है और हमारी इनके साथ बातचीत होती रहती है। नंबर टू सर, नहीं रिकवर हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा यहाँ चोरियां नहीं हो रही। नंबर 2 सर, जैसे मेरे एक साथी ने पहले ही बात किया, मैं उसको ज्यादा ऐड नहीं करूंगा। आजकल सबसे बड़ा एक लड़ाई का जरिया बन गया कि आपके घर के आगे, गेट के आगे लोग गाड़ी लगा के चले जाते हैं, अपने कहीं ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हैं, गाड़ी लगाई और चले गए। जब वो आते हैं तो उनसे बात करो तो कहते हैं सड़क आपके बाप की है। तो मेरे एक साथी ने ऐसा सवाल उठाया है कि भाई इस तरह का भी एक प्रोविजन करिए कि भाई अगर रोड पे ट्रैफिक लोग गाड़ियां लगा रहे हैं तो कम से कम एक साइड खाली रखें, ताकि दूसरी तरफ से फ्लो हमारा बनता रहे। ये आपने जो बात बताई सर ट्रैफिक की, ये तो बिल्कुल रियलिटी है। इसमें और क्या है सर? आई थिंक इसमें हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को साथ में इन्वॉल्व करेंगे। जी सर। और उसको देखते हैं कि या तो ऑड इवन डेज करें कि एक दिन इस तरह की गाड़ियां बाई तरफ पार्क होगी, अगले दिन दाहिनी तरफ पार्क होगी। सर उससे क्या हो रहा है कि एक गाड़ी इस तरफ लग जाती है, एक इस तरफ, खासकर मैं समझ गया सर, मैंने आपकी बात मान ली। तो दूसरी तरफ मान ली सर, मान ली। थैंक यू सर जी। दूसरी बात यह है सर कि इसके ऊपर एक रात को भी हमारी गश्ती, मतलब इस तरह पेट्रोलिंग होना चाहिए थोड़ा बहुत, उससे हमारा ठीक रहेगा सिस्टम। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। इंडिया सिटीजन सर, जो अजय साहब ने साउथ को कंट्रोल किया ना, जो हम एज ए सिटीजन देखते हैं, उनकी टीम ने सर ब्रिलियंट सर, नो मैच सर। सर मैं आपसे बताऊं, आप ये मत सोचिए कि सपोलिया साहब ने इसके बारे में कहा तो हमें बुरा लगा। नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप यहाँ पुलिस के बारे में जो भी आप आफ्टर ऑल ये क्यों कह रहे हैं चीजें, क्योंकि आपको हमसे उम्मीद है। जी सर। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि आपकी उम्मीद पे खरे उतरें। हमारे पास साधन लिमिटेड हैं, बिल्कुल जायज बात है, मैन पावर कम है, जायज बात है, लेकिन आपकी उम्मीद पे खरा उतरना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है। हम भी सर काफी देर से वॉच कर रहे हैं सर पुलिस के सिस्टम को। सर हम 1-2 सालों से देख रहे हैं जो साउथ की टीम है सर, जितना अच्छा काम कर रही है सर। नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप उनको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें, उसके लिए मैं बिल्कुल आपसे आग्रह नहीं कर रहा। बिल्कुल। मैं तो क्लियरली कह रहा हूं कि हम आपसे इस खुली मीटिंग में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जितनी परेशानी है, सिंपल सी बात है, अगर आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं, तो आप बताइए, या आप जो, और मजे की बात है,
अभी तक वैसे वो अलग से इस मीटिंग को खत्म होने के बाद किसी का कोई भी निजी ग्रीवांस होगा, आप मुझसे अपनी मिलके मुझे अपनी अर्जी दे सकते हैं, अपने डिटेल्स दे सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग का मकसद ही यही है कि जो एक सोसाइटी, जो हमारे समाज में, आपके इलाके में, आपकी कॉलोनी में कोई भी आपकी परेशानियां हैं, अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि इनका अगर कुछ ना कुछ इनको रिजॉल्व करना है तो कैसे करें। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर, सत श्रीकाल सर। मैं एडवोकेट जसमीत कौर पांडे हूँ, काउंसलर हूँ जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड की। सर मेरे अंडर जो होती है कंटोनमेंट की वार्ड नंबर 3 और 3 आती है, लेकिन उसी के साथ एडजॉइनिंग वार्ड है वार्ड नंबर 4। सर हमारे वहाँ पर काफ़ी देर पहले जो है कोई आज से 3-4 साल पहले की बात मैं करती हूँ सर, वहाँ पर घर घर जो थे वो ठेके थे, शराब के ठेके थे। अगर किसी को रात को 3 बजे शराब चाहिए वो भी अवेलेबल होती थी, 2 बजे चाहिए थी वो भी अवेलेबल होती थी, एनी टाइम किसी को भी चाहिए थी वो वहाँ से जाके ले सकता था। लेकिन सर अब जो है मैं इसमें एक प्रशंसा भी करती हूँ अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कि सर वो जो सिस्टम है घर घर ठेके वाला सिस्टम जो है वो टोटली खत्म हो चुका है वहाँ से। क्योंकि सर इसमें जो है हमारे वहाँ के कुछ लोग जो थे इसमें बहुत उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जब भी कुछ ऐसा होता था तो वो पुलिस को बताते थे, वो उसी वक्त वहाँ पर जाकर ये सिस्टम जो है वो सारा खत्म हो चुका है। लेकिन सर अब वहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि अब शराब को छोड़कर वहाँ पर चिट्टा जो है वो बिकने लगा है। ऑलरेडी वहाँ पर जो बस्ती है वो बहुत गरीब है, तो उस वजह से क्या होता है चिट्टा इतना महंगा है, कोई किसी का छोटा सा फ़ोन गिरवी रख रहा है, कोई घर से प्रेस बेच रहा है, कोई घर से हीटर बेच रहा है। मतलब इस तरह का माहौल जो है वो वहाँ पर शुरू हो चुका है। सर मेरे जो साथ वाली एडजॉइनिंग चौकीज़ हैं वो चट्ठा चौकी है, गाड़ीगढ़ चौकी है, फलाई मंडाल चौकी है। सर इन एरियाज़ में जो है ये बहुत ही मतलब कि फेमस हो रहा है, जिस तरह आपने भी कहा कि हम जो है इसकी तरफ खास ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ सर मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जब भी हमने उनको कभी व्हाट्सएप मैसेज डाला या कभी कॉल करी, जिस तरह की मैं अजय जी की बात करूँ सर, इन्होंने हमेशा रिप्लाई दी है। और इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी हमारा मैसेज आता है या किसी और सिटीजन का मैसेज आता है ये उसके ऊपर उसी वक्त एक्शन लेते हैं। सर इसी के साथ वहाँ पर जो लोग जो हैं उनका एक बन चुका है कि शाम को घर आना, पैग लगाना और बीवियों को मारना, मारपीट करनी। सर हमारा यही रहता है कि ये जो मसले जो छोटे छोटे हैं पुलिस तक ना जाएं, क्योंकि पुलिस के ऑलरेडी वो बर्डन्ड है। सर कई मसला अगर हमारा कोई वीमेन सेल में चला भी जाता है तो सर मैं वीमेन सेल की जो हमारे एसएचओ मैडम आरती जी को भी बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि वो ये मसले जो है एकदम से कॉम्प्रोमाइज़ करवा के जो कपल्स होता है उनको जो है दोबारा से लड़कियों को घर भेजने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो हमारे सर मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक भी मैंने कभी भी किसी अजय जी की बात हो गई या किसी और इंस्पेक्टर की बात होगी, एसएचओ सर की बात होगी तिवारी से, सर इन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत कोऑपरेट किया, चाहे मैं रात को 2 बजे फ़ोन करें 12 बजे करें। सर इसी के साथ कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया सर, उसने मुझे कहा कि दीदी मुझे 1 साल हो गया, मैंने ना अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, पासपोर्ट उसका बना है, उसने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है सर। ये अप्रैल 2025 में उसका जो है वो रिन्यूअल खत्म हो जाएगा। वो कह रहा है कि मेरी पुलिस वेरिफिकेशन भी सब कुछ हो चुका है, 4 महीने हो गए मेरी वेरिफिकेशन खत्म हुए, मुझे पासपोर्ट नहीं मिला। तो सर मैं कहती हूँ कि बाकी सब ठीक है, क्योंकि जहां तक मैंने इतना मुझे लगा कि पुलिस के साथ जितना मैंने काम किया, 2014 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करके जीती, आज 10 साल हो गए। मैम आप ये सिंपल सी बात है, ये लड़का इसकी क्या प्रॉब्लम है वो लड़के का आप राब्ता करवाइए एसपी साउथ के साथ। जी सर। इसको हम अगर डिले क्या है, जरूरी नहीं कि डिले हमारे पास हो, जी जी डिले और कहीं भी हो सकता है, तो हमें पता तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप एक लड़के का नाम की बात कर रहे हैं, हमें उसका नाम नहीं पता, उसका एड्रेस नहीं पता, उसका फॉर्म नंबर नहीं पता, तो इसमें मैं आपको कोई जवाब दे नहीं पाऊंगा। सर से मिल लूंगी और उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। जी सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। सिंह साहब। मैं सरपंच अवतार सिंह, पंचायत चट्ठा फार्म। मैं सब तो पहला साढ़े नए डीजीपीसी, आईजीपी और जितनी भी पुलिस टीम है इन्होंने मुबारकबाद देना है कि इन्होंने एक आज सराहनीय काम किया है। सारी पब्लिक ਨੂੰ जितने भी रिप्रेजेंटेड लोग की सन उन्होंने इत्थे बुला के अपने ਜਿਹੜੇ नए कानूनों के बारे आगाह किया है। असी एज ए सरपंच मैं अपने तौर पर आप जी ਨੂੰ ਇਹ निवेदन जरूर करांगा कि साडे एरिए रूरल एरिए विच ਜਿਹੜਾ ड्रग्स का काफ़ी महामारी चल रही है। आप जी ਨੂੰ दस दईए कि असी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा करवाते हाँ। मैं डीजीपीसी के संज्ञान में जरूर लिया चाहता हाँ कि मैं जम्मू कश्मीर चूँ मैनू अवार्डी सरपंच हाँ, मैनू राज भवन बुला के साढ़े LG साहब ने अवार्ड दिता सी
मगर बदकिस्मती नाल साडे रूरल एरिया में चिट्टे की बड़ी महामारी शुरू हो चुकी है। मैं आप जी ਨੂੰ निवेदन करांगा खास करके चिट्टे दे उपर, चिट्टा ही नहीं ਜਿਹੜੇ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानियां बहुत जरूरी ने, क्योंकि बच्चे अज घरां विच मोबाइल ते ही लगे ने। जदों स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलणगियां ते मैनूं लगदा यूथ साडा बच पाएगा। असी जितने भी टूर्नामेंट करवाते हाँ, SP साउथ नूं भी असी जम्मू अपने चट्ठा पंचायत विच बुला के एक बड़ा प्रोग्राम किया सी। मैं DGP अगे एक निवेदन रखना चाहता हाँ कि साडा उत्ते स्पोर्ट काउंसलिंग का ग्राउंड है। असी अफसरां नूं कई बार कहा कि तुसीं इत्थे लाइटिंग की सानू काफ़ी कमी है। मैं महसूस करदा अगर उत्थे लाइटिंग सिस्टम लग जाए तो असी ये मैच रात नूं भी करवावांगे। मैं आप जी नूं निवेदन करदा हाँ वो लाइटिंग सिस्टम अगर सानू चट्ठे पोरकम स्टेडियम भी दिता जाए तो काफ़ी सुधार होएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ड्रग्स पे चिट्टे पे एक ही बात है, अब सब लोग वही दोहराएंगे, उस पर बार बार मैं कोई नई टिप्पणी क्या करूंगा। आप सब चेंबर ऑफ कॉमर्स से हैं, मैडम आप भी सरपंच हैं, अभी सरदार जी जो बोल रहे थे वो भी सरपंच हैं। मुझे तो लगता है ये सिविल सोसाइटी और खासतौर पे जो ग्रास रूट्स के ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन चेंबर ऑफ कॉमर्स, हमें मिलकर कोई मुहिम चलानी पड़ेगी जिसमें लिटरली स्पीकिंग नौजवान शाम को खेलने पे मजबूर हों, लेकिन जब तक उनके माँ बाप उनको वो प्रेशराइज नहीं करेंगे, उनको सही रास्ते पे नहीं डालेंगे, तो ये काम कैसे होगा। क्योंकि लाइटिंग सरपंच साहब कहते हैं हो जाए, रात को मैच होंगे। सवाल है कि ये लोग मैच खेलने आएंगे क्या अगर वो चिट्टा लेके या बाकी नशीली पदार्थ लेके मदहोश हों। तो ये हमें, और सबसे बड़ी बात है मैं बताता हूं, अगर कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट बनता है, कहीं ना कहीं आप सब मां बाप हैं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, और मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे कभी अपने कमरों में खाना नहीं खाते। घर में नियमित तरीका है, जब खाना खाना होता है सब डाइनिंग टेबल पे आते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। खाली यही नहीं, रात को अलग अलग, आजकल हर कमरे में टीवी होता है, लेकिन हमारे घर में यह भी सिलसिला नहीं है कि टीवी सब लोग रात को अलग देखेंगे। जब टीवी चाहे दिन को देखना, रात को देखना है, सब इकट्ठे देखते हैं। पुरानी कहावत है, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। कहीं ना कहीं हम ही ने हमारे बच्चों को या तो ज्यादा आजादी दे दी या उनकी जेब में ज्यादा पैसे, ज्यादा सहूलियतें दे दी, जिसकी वजह से आप बताइए, आप गांधीनगर लिहाजा मेजॉरिटी लोग बड़े एफ्लुएंट इलाके के हैं, जम्मू का सबसे एलीट नेबरहुड है आपका। आप बताइए जो लोग यहाँ हैं, आप में से कितने लोग अपने 10-12 साल के बच्चे को आईफोन देने से मना कभी आपने किया हो। तो रियलिटी है कि तो ये लड़ाई तो मतलब पुलिस तो सिर्फ जो ये तस्कर है, जो बेच रहा है, जब वो हाथ में आएगा उसको पकड़ेगी, उसके ऊपर केस चलाएगी, फिर उसको हम अदालत में पेश करेंगे। वकील साहब ने बड़ी सही बात बताई कि NDPS के केस में एक्यूटल भी बहुत हो रहा है, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या हमारी कमजोरियां हैं, क्या हमारी तफ्तीश खराब थी, क्या हमारा जो कस्टडी थी या चेन ऑफ कस्टडी थी एविडेंस की, उसमें कहीं गड़बड़ हुई। तो ये सारी चीजें, लड़ाई लंबी लड़ाई है, लेकिन जब तक सोसाइटी एट लार्ज, और जैसे खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में सरपंच से बड़ी कोई चीज होता नहीं है बाय द वे, और सरपंच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी तरह किसी भी गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, एक आप लोगों का एक आपका लोगों का एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए बच्चों में, ताकि वो आपके सामने से भी गुजरें तो अदब से गुजरें। क्योंकि जब ये बेअदबी बढ़ती जाती है, तब आदमी, जो आप बता रहे हैं ना कि लोग कार में बैठ के शराब पीते हैं, कितने अफसोस की बात है। पार्क में आप कहते हैं चिट्टा बिकता है, कितने अफसोस की बात है। करेंगे सर इस पे लड़ाई करेंगे। हाँ जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब डीजीपी साहब एक मिनट सर, एक मिनट, ये कुछ या बैठ जाता हूँ सर, इट्स जस्ट अ सजेशन सर। लिकर की बात हुई कि लोग दुकानों के बाहर लिकर लेते हैं। सर, हमने भी गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, हमारी बार जितनी है वो खाली है, बिकॉज उसमें टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा है। हमने भी सर से उनको सजेस्ट किया है। मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊंगा सर कि अगर आप भी ऐसा कुछ उनको बोलें कि साहब जो आपके बार खाली हो रहे हैं उसको रिफॉर्म में लाइए कि वहां पर लोग बैठ के पिए। देन सर एक पार्किंग की बात की, वी हैव सजेस्टेड ऑनरेबल सीएम दैट पीपीवी मोड पे पार्किंग बनाई जाए, या जिनके खाली प्लॉट्स हैं उनको परमिशंस दी जाएं कि वो लोकेलिटीज में पार्किंग की प्रावधान करें और वो उससे बेशक अर्निंग करें, उससे लोगों का भला होगा। दूसरा सर, एक पहले सेक्टर वाइज इंटरेक्शन हुआ करती थी पुलिस की, अजय जी बहुत कर रहे हैं, हमारे एरिया में भी बड़ा किया ना इंटरेक्शन, जब बहुत बार की है, बट एक ये रेगुलर होना चाहिए सर कि जैसे आपने ड्रग्स पे कहा, अगर एक घर में ड्रग्स की बीमारी है वो नहीं बताएंगे, बट पड़ोसी जरूर बताएगा कि साहब यहाँ इनका बच्चा जो है वो इस चीज से परेशान है। एक काउंसलिंग टाइप हो सकती है अगर हम सेक्टर वाइज, मोहल्ला वाइज करें। तभी तो मैंने कहा सर कि ये अब हमें सोसाइटी के साथ बिल्कुल, और जहां आप जैसे लोगों की मदद ले सकते हैं, कुछ काउंसलिंग सेंटर्स हर गांव के लिए, हर मोहल्ले के लिए सोचने पड़ेंगे। सो दैट इज इट सर, ये सजेशन। जी जनाब डीजीपी साहब। हेलो, एक मिनट सर, मैं सोमराज दत्ता रिटायर्ड एसएसपी हूँ। मैं अपनी तरफ से, जम्मू वासियों की तरफ से, रिटायर्ड पुलिस अफसरों की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, एक शेर याद आ गया कि सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि डीजी साहब वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी, ना ये बात होगी ना वो बात। जनाब अली, ये जो शिकवे शिकायत हैं, आज शिकवे शिकायत का मतलब नहीं है, हमें खुशी है कि आपसे मुलाकात की हमने, हम आपसे नहीं मिल सके। हम इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, और जिस घर में बुजुर्ग परेशान है वो घर खत्म हो जाता है। इस घर को आपने रखना है, आपने मेल जो रखना है हमसे। जनाब अली, ये जो मीटिंग, जो जनाब ये शिकवे शिकायत आपसे हो रहे हैं, ये आईजी लेवल पर हूँ, डीआईजी लेवल पर हूँ, ताकि एक समरी बना के आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन मैं आज लोगों को मौका मिला है कि पुलिस अफसरों से मिलने के लिए, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने लोग आए हैं, सभी जम्मू के ये क्रीम है। मैं जनाब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो टीम आ रही है, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, आईजी साहब नए आए हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी तरफ से मैं एक सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड सीनियर सिटीजन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब को एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। ये हम लोगों की मांग है, इसमें डिविएट नहीं करना जनाब, ये हमने कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर 3, जो ये गैप है, जो ये शिकवे शिकायत हो, वो गैप क्यों है कि थाने लेवल पर, एसडीपीओ लेवल पर ये शिकायत नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। थाने लेवल पर और एसएचओ, एसडीपीओ लेवल पर हम लोगों से कोई तालमेल नहीं है। मुझे रिटायर हुए 22 साल हो गए, 22 साल में एक दिन भी किसी एसएचओ ने नहीं बुलाया कि आज पब्लिक पुलिस की मीटिंग है, आप आइए। वो चार अपने बीसी और 10-15 आदमी अपने के वो बुला लेते हैं, तो उनसे मीटिंग करके खत्म हो जाती है। हमें पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं हकीकत क्या है। हकीकत, हम पहले पुलिस अफसर हैं, जवानी हमने पुलिस में निकाली है, उसके बाद हम मल्लेदार बन गए। हमें मल्ले का भी पता है, पुलिस का भी पता है। जनाब से रिक्वेस्ट है कि एक सिर्फ लिखा पढ़ी नहीं, उसका एक्शन भी लें कि बताओ भाई एसडीपीओ या एसएचओ आपकी जुरिडिक्शन में कितने रिटायर्ड हैं और उनकी माली पोजीशन क्या है। लोग बड़े परेशान हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ। मैंने डीआईजी साहब से कई बार कहा, इन्होंने भी टेलीफोन किया, सर्कुलर दिए, आगे नीचे कोई पूछता ही नहीं है। ये एक इस गैप को खत्म करें। दूसरा जनाब, पहले डीजी साहब और रिटायर्डों के बीच में साल में 2 बार मुलाकात होती थी, श्रीनगर में और जम्मू में। वो जीओ मैस में लंच होता था, डीजी साहब मिलते थे।
लेकिन सुवेन साहब के होते हुए उसके बाद ये मसला खत्म हो गया, हमें कोई पूछता ही नहीं है। आज मिले हम आपसे, तो इसलिए जनाब से भी रिक्वेस्ट है कि जियो मैस में जनाब हमसे मिले, हमारी बातें सुने। हमारे जो हम मांगे कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम हम जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, जो ये है वो उनको हम आपको बताएंगे। नंबर 3 जनाब ये है कि मैं रिटायर होने के बाद एंटी ड्रग्स का मैं काम करता हूँ, मैं मीटिंगें करता हूँ, सबकी करता हूँ, लेकिन वो अपनी पेंशन से। पुलिस के पास बड़े पैसे हैं, आपके पास जनाब करोड़ों रुपया है, वो हमें दीजिए, हमारी उसको एसोसिएशन को दीजिए ताकि हम उसमें भी काम करें। तीसरा जनाब वो एक शेर याद आ गया, शेर सुना रहे बादे सभा साहब कहते हैं सुबह की वाक हो, 4 बजे 5 बजे ठंडी हवा चल रही है। बादे सभा जब गुजरना गुलजार से तो कहना बुलबुल यार से, डीजी साहब से। बादे सभा जब गुजरना गुलजार से तो कहना बुलबुल यार से, खजा के दिन भी नजदीक है, ना दिल लगाना बाहर से। आपने भी जनाब रिटायर होना है, सभी ने रिटायर होना है, हमें इग्नोर मत करिए। तो दूसरा जनाब ये है कि मैं इजाजत चाहूंगा, मैं इनके भी अपने जो हमारे यहाँ पर करीम बैठी है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे तसल्ली है। एज रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मुझे तसल्ली है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, शिकवे शिकायत की कोई बात नहीं। लेकिन जो गैप है बिटवीन SHO, बिटवीन SDPO एंड जनरल पब्लिक, उसको खत्म करें। दूसरा जनाब 1 मिनट, घर खुदा मुझसे ये मांगे, घर खुदा मुझसे ये पूछे, मांग कुछ बंदे मेरे। अरे मैं ये मांगू, महफिलों के दौर ये चलते रहे जनाब, ये महफिलों के दौर, ये मीटिंगों के दौर चलते रहे। IG साहब बैठे हैं, ये अभी नए आए हैं, DIG साहब हैं, SSP साहब हैं, इनसे कहिए और रिपोर्ट लीजिए कि ये महीने में 2 महीने के बाद कम से कम एक दफा हमारे, मैं सुभाष नगर में रहता हूँ, रिहाड़ी कॉलोनी में, मैंने कभी आज तक SP नॉर्थ को नहीं उधर घूमते देखा। कई बार मैंने कहा कि यार आओ घर पर चाय पियेंगे, ये करेंगे, कोई नहीं आता। SHO को कहा, कोई नहीं आता। तो इसलिए ये जनाब जो गैप है इसको खत्म करें। थैंक यू सर। मैंने सर आपसे पहले कहा कि जितने सीनियर सिटीजन हैं उनसे हम राब्ता बनाएंगे और गांधीनगर से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ड्रग्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशानी जो है सोसाइटी में वो ड्रग्स को ही है। लेकिन ड्रग्स में एक बात सर हमें ये भी सोचनी है कि किसी भी ड्रग्स के केस में, वकील साहब बता रहे थे NDPS केसेस में अक्सर एक्विटल होता है, इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं आता। कोई पब्लिक से, कोई मोतबर आदमी ड्रग्स के चिट्टे के केस में, हेरोइन के केस में गवाह नहीं बनना चाहता, चाहे उसके सामने भी हुआ हो। अब जब तक सोसाइटी हमारे साथ नहीं चलेगी, और वो कानूनी एक रिक्वायरमेंट है विटनेस की, और अगर आप विटनेस देने से, जैसे कि मैडम ने कहा, सरपंच मैडम, कि उन्होंने थोड़ी सख्ती करवाई तो उनकी गाड़ी के शीशे जो हैं पत्थरों से तोड़े गए। जंग है, परेशानी आएंगी, लेकिन हम सबको इकट्ठे ही लड़नी पड़ेंगी। जी आप बताएं सर। जनाब DGP साहब, IGP साहब, DIG साहब, मैं सेवक सिंह रिटायर्ड SSP आपका स्वागत करता हूं कि आपने जहां पर आज पहली दफा जम्मू के अंदर सीनियर सिटीजन और पुलिस की एक इंट्रोडक्शन जहां पर किया है, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे से पहले काफ़ी स्पोक्स पर्सन ने अपने अपने विचार रखे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि सो फar एज पुलिस पर्सनल आर कंसर्न, जब तक वो सर्विस में होते हैं वो डिपार्टमेंट का एक एसेट होते हैं।
लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो कोई उनसे बातचीत नहीं करता, क्योंकि रिटायर्ड पुलिस पर्सनल जो हैं वो डिफरेंट लोकेलिटी, और मैं ये समझता हूं कि वो सोसाइटी का और एज वेल एज पुलिस डिपार्टमेंट का स्टिल वो एसेट है। जो इन्फॉर्मेशन वहां से उनको मिल सकती है वो किसी और लेवल से नहीं मिल सकती। रहा सिविल सोसाइटी का कंसर्न, इन्होंने काफी बातें कही हैं, जैसे मेरे मीर बलविंदर सिंह जी ने कही हैं, दत्ता साहब ने कही हैं, और काफी लोगों ने कही हैं शराब के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की नहीं है, इसमें सिविल सोसाइटी को भी अवेयर होना चाहिए कि अगर उनके सामने कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है तो वो इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म करें। तीसरी बात यह है कि अभी मेरे वीर बलविंदर सिंह जी ने पासपोर्ट की बात कही थी। जैसे इन्होंने कहा कि अगर बचपन में किसी से अनजाने में अगर किसी लहर के तहत वो किसी में शामिल हो गए, जब बाद में मैच्योर्ड हुए हैं वो मेन धारा में वापस आ गए हैं, मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं, और आज की डेट में वो एक सिविलाइज्ड पर्सन है सोसाइटी के, अगर वो अपने बच्चों के लिए वो पासपोर्ट बना के उनको फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, तो जो हमारे हेलम ऑफ अफेयर सीआईडी में बैठे हुए हैं वो उन बच्चों को टोटली इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं, इनके फादर इन्वॉल्व थे इसलिए इन बच्चों को पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं ये कहां का इंसाफ है। मेरे साथ ही ये बैठे हुए हैं इकबाल सिंह जी, इन्होंने अपने बच्चों के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, ये कहां की बात है। आपने बच्चों के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, उन बच्चों का क्या कसूर है। मैं पूछता हूं, अगर इकबाल सिंह थे इन्वॉल्व या हैं, ये वेरिफिकेशन आपका काम है और कीजिए और इनको मत पासपोर्ट इशू कीजिए, लेकिन इनके बच्चों का क्या कसूर है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो बात ये है, थोड़ी सी पुलिस को भी स्ट्रीमलाइन कीजिए, खासकर सीआईडी विंग को, कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट मत करें। यहां तक सर अचीवमेंट का कंसर्न है पुलिस का, वो तो अनगिनत है, वो मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद बीइंग ए पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं विटनेस हूं इसमें। जब कश्मीर में फ्लड आया तो रात को मिडनाइट में हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि जाकर जेलम का एम्बैंकमेंट ब्रेक करो ताकि श्रीनगर को बचाया जा सके, और अप टू चेस्ट लेवल वाटर पर 15-20 किलोमीटर हमने ट्रेवल करके अपनी नफरी लेकर अंडर माई सुपरविजन हमने जाकर जेलम का एम्बैंकमेंट ब्रेक किया और श्रीनगर को बचाया, जबकि वो हमारा काम नहीं था, वो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम था। लेकिन जब नॉर्मलसी आ गई, फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट वहां पर टेंडर पाने के लिए आ गए, कंस्ट्रक्शन के लिए आ गए, और करप्शन के लिए कमीशन खाने के लिए वो वहां पहुंच गए। सिमिलरली सर, जब बीइंग एसपी ऑपरेशन इन पुंछ, जब मैं हायर रीचेस पर पहुंचा, वहां पर पीर पंचाल की पहाड़ियों पर, वहां भी मैंने देखा कि करोड़ों करोड़ रुपए की बिल्डिंग वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल बने हुए हैं, एक भी सरकारी मुलाजिम उसमें नहीं था, लेकिन वहां भी हमारा पुलिस वाला अपनी जान को रिस्क पर रखकर वहां पर ड्यूटी दे रहा है। आप सिविल सोसाइटी को यह भी सोचना चाहिए कि ये खाली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पुलिस से जितने तक पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप साथ साथ बाकी डिपार्टमेंटों की भी कारकर्दगी देखिए ना। पीडब्ल्यूडी क्या कर रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये रणवीर कैनाल कितनी देर से आज दिन तक देखो कितनी सिल्ट पड़ी हुई है, हर साल टेंडर निकलता है, लेकिन रणवीर कैनाल कभी साफ नहीं हुई। तो ये सारा सिस्टम जो सारा है, बाकी डिपार्टमेंट भी है, सिविल सोसाइटी को बाकी डिपार्टमेंट की तरफ ही नजर मारनी चाहिए। बाकी एक अच्छा एक इनिशिएटिव है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी गाइडेंस में। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपके क्वेश्चन का अभी जवाब दिया जाएगा, बट मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी साहिबान से कि हम लोग रिपीटेटिव क्वेश्चंस पे ना आकर, क्योंकि एक ही बात को हम पहले ही बता चुके हैं पुलिस की तरफ से कि यस वी एग्री कि मैन पावर की कमी है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। और मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एज अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑल्सो, रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं, प्रिसाइज क्वेश्चंस एंड डिफरेंट क्वेश्चंस। एंड मिस्टर अरुण वो प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो 4 बार खड़े हो चुके थे, सर आप भी कर लीजिएगा सर।
मोहतरम जी डीआईजी साहब, आईजी साहब, मोहतरम आईजी साहब और बाकी दीगरान ऑफिसर, हम आपके ज़्यादा आभारी हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं कि जो आपने ये सीनियर सिटीज़न के साथ मीटिंग रखी है। हम चाहते हैं ऐसी मीटिंगें आम हों, जिसकी वजह से आज जो हमारे नौजवान, मैं वो बात नहीं करना चाहता जो मेरे सारे भाई कर रहे हैं ड्रग्स और चोरी के बारे में, तो इस मीटिंगों से एक होगा कि हमारा तालमेल होगा और काफी बिगड़े हुए काम सुधरेंगे और लाइन पे आएंगे। मैं अपना तारुफ देता हूं, मैं मोहम्मद अशरफ मुगल, प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल और बठिंडी का रहने वाला, बठिंडी मक्का मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी। आजकल हमारे माह रमजान का महीना चल रहा है, रोज़ों की आमद से 11 साढ़े 11 बजे तक हमारी नमाज़ें और तरावियाँ पढ़ी जाती हैं। मैं आईजी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी पुलिस की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हमारे कुछ नौजवान लड़के सिर्फ बठिंडी की बात ना करते हुए सिदरा रोड, बठिंडी, बाकी जम्मू ओपन एरिया में जो स्टंटबाज बाइकों के या गाड़ियों के रेसिंग का करते हैं, उनकी तो काम कसी जाए। तो वो बहुत डिस्टर्बिंग की बात हो रही है कि हम नमाज पढ़ते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, कुछ लोग हार्ट पेशेंट हैं, वो बाहर से ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिसकी वजह से कि कुछ बंदे कई बार रास्ते चलते हुए गिर गए। और नंबर 2, मैं 4-6 दिन की बात पहले हमारी मीटिंग ट्रांसपोर्ट नगर में मुनक्किद की गई, जिसमें हमारे एसपी साहब, अजय साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, पूरी पुलिस की टीम ने मीटिंग ली। तो चोरी की बात करते हैं या ड्रग्स की, हमारी वहाँ एक शॉप में रात को चोरी हुई थी, ताले उसके टूटे थे। जब उन्होंने एसपी साहब से गुहार लगाई कि हमारी दुकान रात को लूटी गई, चोरी हुई, तो मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने वहाँ ये सवाल किया और उसको जवाब दिया दुकानदार को कि एक कमजोरी हमारी है, जब तक हम अपने घरों के तालों की हिफाजत खुद ना करेंगे, पुलिस कहाँ जाएगी। इसलिए हमें पुलिस के साथ जुड़ना है, पुलिस के साथ तालमेल करना है और अपनी दुकानों पर चौकीदारी या कैमरे ये लगाने हैं, उसमें हमारी सेफ्टी है। दिन ब दिन क्राइम अगर बढ़ रहा है तो हमें ये मालूम है कि क्राइम के साथ साथ पुलिस भी होश में आ रही है और पुलिस भी अपना काम तेजी से कर रही है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आईजी साहब से कि हमारी अख्तियारी में कभी शामिल हों। हमें हौसला अफजाई हुई कि हम शाम को 6:30 बजे रोज़ा अख्तियार करते हैं और काफ़ी मोहतरम लोग पहले भी आया करते थे, आईजी साहब पहले भी आते थे अख्तियारी में, उसमें हमें हौसला अफजाई होगी। और बाकी मैं एक छोटी सी बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि वहाँ हमारे चौकी अफसर साहब हैं, वो ज़रा थोड़ी और सख्ती करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ एक नाका लगाया जाए, ताकि जिसमें गाड़ी वाले या बाइक वाले उसमें रुक कर जाए, उनको पता चले यहाँ नाका है, कोई भी हरकत करने वाला आदमी वहाँ से गुजरने से थोड़ा गुरेज करे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, मैं कमलजीत, यूथ प्रेसिडेंट सरारा सभा बाउफोर्ट। सबसे पहले मैं तमाम ऑफिसर का वेलकम करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पे सभी बुद्धिजीवी को आज आमंत्रित किया। देखें, लीकर ड्रग्स को लेके काफ़ी सारी बात हो चुकी है और काफ़ी अच्छा जवाब मिल चुका है। मैं अगेन इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, बस आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। मैं बाउफोर्ट से बिलोंग करता हूं, जहां पे रघुरा एरिया, कासिम नगर एरिया आता है, पर वहां पे एसपी सर ने काफ़ी अच्छी लगाम कसी हुई है। जो वहां पे 100% चलता था, आज मिनिमम 20% रह गया है। देखिए, कोई भी चीज खत्म होती है तो धीरे धीरे ही होती है, सबके सहयोग से होती है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और लिहाजा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बाउफोर्ट काफी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आबादी भी वहां पे काफी ज्यादा है। हमारा एक पुलिस पोस्ट हुआ करता था नेशनल हाईवे 44 पे, जिसको पिछले 10-12 महीनों से हटा दिया गया है। तो इतना क्षेत्र कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, जो नेशनल हाईवे 44 पे
पुलिस पोस्ट हुआ करती थी जनाब उसे फिर से ऑन करवा दीजिए। इससे क्षेत्र में काफी फर्क पड़ता है और कासिम नगर एरिया जैसे 1 किलोमीटर के भीतर ही वो चौकी हुआ करती थी और जो पुलिस की दहशत थी वो लोगों में थी, तो इससे भी शायद हमें फर्क पड़ेगा। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस चौकी को वो ऑन करा दें। धन्यवाद, शुक्रिया। रिस्पेक्टेड डीजीपी साहब और आपकी टीम, आपको बहुत बहुत मुबारक आज का दिन। मैं दीपक मल्होत्रा, जनरल सेक्रेटरी नानक नगर शॉपकीपर्स एसोसिएशन। आपके पास सजेशंस बहुत सारी आ गई हैं और अब वो रिपीट हो रही हैं। मैंने सोचा कि इस मौके पे मैं आपको अपने एरिया का, बिकॉज मैं उस एरिया का कोई 4 बार टेन्योर से जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं आपको डेट करा दूँ कि आप हमारे यहाँ पर जो आपका सिस्टम है, जो हमारे एरिया के SHO हैं, यहाँ पर अभी पता लगा कि बहुत एरिया है, लेकिन मैं इस बात की दाद देना चाहता हूँ कि अगर जज्बा है तो एरिया कुछ भी नहीं। हमारे SHO गांधीनगर, यहाँ वहाँ के हमारे बीट ऑफिशियल जो है सरदार संदीप सिंह, मतलब इस एरिया में कोऑर्डिनेशन हमारा, मैं सभी भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, अगर आप कोऑर्डिनेशन रखते हैं अपने कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के साथ तो बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है सॉल्व हो जाती है। हमारे एरिया के जो सरदार संदीप सिंह बीट ऑफिशियल हैं, वो बेखूबी सभी इंटरेक्शन और सभी दुकानदारों से होके, आज मेरे को याद नहीं आता कि हमारे नानक नगर शिवाजी चौक नानक नगर एसोसिएशन में कभी कोई वारदात हुई या नहीं। तो इसी तरह मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक यही बात सही है, कुछ बातें जो हमारे हाथ में नहीं है, जो इमीडिएटली एक्शन में नहीं आ सकती, एरियाज बढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन अगर हम पब्लिक आप लोगों के साथ तालमेल बना के रखें, आप लोगों को अपडेट करते रहें और आप लोगों को कोऑर्डिनेट करके करें तो कभी काम संभव। आप सबको इस आज के दिन के लिए बहुत बहुत मुबारक। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू कभी तो सुल्तान रहा, तेरी अजमतों का पता तेरे लहजे से चलता है। जनरल साहब, बड़ा खुशी का मकाम है आप तशरीफ लाए, मैं आपका वेलकम करता हूं और साथ में हमारे इंस्पेक्टर जनरल साहब और हमारे जम्मू जोन के और SSP और यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड ऑफिसर गुलाम अहमद ख्वाजा साहब और बहुत सारे ऑफिसर और भी हैं रिटायर्ड, हमारे सबका वेलकम करता हूं और आपको खराज तहसीन पेश करता हूं आज के इस इवेंट्स के लिए। जनरल साहब, 125 करोड़ इस रियासत की आवाम आपकी तरफ देख रही है और आप 125 करोड़ के वालिदैन हैं। जनरल साहब, चाहे बिलावर हो या कश्मीर की घाटी हो कपवाड़ा की, वो आपकी तरफ नजरें लगा के देख रही है। वो मजलूम, वो गरीब आवाम, वो ड्राइवर, वो मजदूर, वो लेबर करने वाला भी जनरल साहब आपकी तरफ देख रहा है। हम सब के ऊपर एक ताकत है जिसके आगे हमने जवाब देना है और एक दिन हम सबको मिट्टी का मगज बनना है और इस जमीन के नीचे जाना है। जनरल साहब, आप मेरी बात समझ गए होंगे। जनरल साहब, मैंने बहुत सारी बातें कह दी हैं, इसमें आप समझ गए शायद मेरी बात। जनरल साहब, पुलिस का बहुत रोल है। पुलिस हमारी रियासत की नहीं बल्कि हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि इंटरनेशनल सतह के अंदर, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं जनरल असेंबली को भी एग्जामिन करता हूं और समझता हूं, एक आइडेंटिटी है और एक बहुत बड़ा रोल पुलिस का होता है। जो रात और दिन प्रॉब्लम क्राइसिस को फेस करते हैं, जो रात और दिन जहां एक शोहर और बीवी का झगड़ा होता है वहां भी लोग पुलिस को ब्लेम करते हैं, मैं इस चीज का भी कंडेम्ड करता हूं। जनरल साहब, मेरी गुजारिश है आपसे, आप उन मजलूमों का ख्याल रखिए और आप कड़ी कार्रवाई कीजिए ऐसे अफसरान के खिलाफ जो नाजायज तौर पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। जनरल साहब, दूसरी बात मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो स्टेट के जो स्कॉलर आउट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाके
एजुकेशन के हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन लेते हैं, आपके उनके बारे में क्या प्रोग्राम है? उनको टार्चर किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। जनरल साहब, दूसरी बात मैं आपसे ये करूंगा, यहाँ ओट ऑफ रियासत से भीख मांगने वाले लोग बहुत आए हैं, गाड़ियों में घुसते हैं, हमारी जेबों को काटते हैं, गाड़ियों में नहीं बैठने देते, स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियों को कॉलेज में डिस्टर्ब करते हैं। उन भीख मांगने वाले लोगों के लिए आपका क्या ख्याल है? और दिन को वो मांगते हैं, शाम को 2-3 हजार रुपया लेके वो पाथ पे जाके जनाब ड्रग्स में बेहोश हो जाते हैं। जनरल साहब, इस बात की मैं आपको बिलखसूस मुबारकबाद पेश करता हूं जो आपने शराब के बारे में कहा है। मेरी माँ बहनों की चूड़ियां बिक गई हैं, हमारे उनके जहेज खत्म हो गए, उनके घर बिक गए इस शराब ने। जो ये लानत है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो आपने वादा किया है, इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। शुक्रिया जनाब। मैं जरूरी एक ही बात कहूंगा लास्ट में, मैं सरहदी डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहने वाला हूं। राजौरी और पुंछ बाई एरियल, हमारे से बाई एरियल 500 किलोमीटर, वहां से एक फायर चलता है और हमारे लोग उसको फेस करते हैं। जहां के लोग सिर्फ पहाड़ों पे रहते हैं, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमारा पहाड़ी एरिया है और हमारे लोगों का सिर्फ बारिश पर दारोमदार है, बेर और बकरियों पर दारोमदार है। उन गरीब लोगों के लिए स्पेशल कुछ रिक्रूटमेंट की जरूरत है जनरल साहब, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं इसके साथ कहूंगा, हमारे वहां एक ऑफिसर लगे थे 2015-17 में, जोगल मनाज साहब, उन्होंने राजौरी और पुंछ में जो काम किया है जनरल साहब, मैं सोचता था ऑफिसर को सोसाइटी के सामने रखूं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जोगल मनाज साहब को पता नहीं वो किधर है, लेकिन उनको मुबारक हो, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और आज के इस इवेंट्स के लिए जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और बिलखसूस सर आपका चेहरा, आपका लहजा, आपका बॉडी लैंग्वेज ये बताती है यहाँ मुलाफ ला रहेगा, यहाँ कोई गुंडा पनपेगा नहीं, उनको कौन तले रोंदेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले कि सर आपकी बात का जवाब दें, मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ, वी आर टेकिंग अप द लास्ट 5 क्वेश्चंस, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका समय भी बहुत कीमती है और उनको भी ऊपर ड्यूटीज का बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मौजे बला तो चुन को भी 2-4 थपेड़े हल्के से, वो लोग जो साहिल पर रहकर तूफान का नजारा करते हैं। सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सब यहाँ आए, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने 1 मिनट के लिए आप ये मत सोचिएगा कि आप 1 मिनट के लिए मत सोचिएगा कि जो आपका फीडबैक था उसको तिरस्कार किया जाएगा या नकारा जाएगा। फीडबैक से ही काम चलता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बॉडी, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, फीडबैक से चलती है। आप कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बताइए, इवन इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में भी जब तक पब्लिक फीडबैक नहीं होता या आपके अपने एम्प्लॉयज का फीडबैक नहीं होता है तो आप आगे नहीं बढ़ते। फीडबैक एक सबसे बढ़िया तरीका होता है जिसमें आप, यानी कि आप हमारे मालिक हैं, आप हमें आईना दिखाते हैं और वो आईने में हमें पता लगता है कि हमारी सूरत कैसी लगती है। वरना जब हम खुद आईना देखते हैं तो रिफ्लेक्शन कुछ और आती है। तो आपने जो कहा है पॉइंट्स सब सर आंखों पे हैं और वादा करना तो बहुत मुश्किल है कि ये तमाम चीजें रातों रात बदल जाएंगी, लेकिन कुछ बिंदुओं पे, कुछ पॉइंट्स पे, गांधीनगर पुलिस स्टेशन जो कि हमारा ऑलरेडी मॉडल पुलिस स्टेशन है, इस पे हम इसमें यह पायलट प्रोजेक्ट, चाहे वो जो आप बता रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, चाहे सोशल जितने भी मेहनत हैं, और स्पेशली जो सीनियर सिटीजन के साथ हमारी आउटरीच है, ये कार्रवाई हम आज से ही यहीं से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, बराए मेहरबानी।
पहले वाले सारे ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक ट्रांसपोर्ट करूँ, छोटा सा ट्रांसपोर्ट करूँ अपने इसी एरिया में, गांधीनगर एरिया में। बोलना चाहता हूँ, प्रॉब्लम हमारी यही है, पिछले 7-8 साल से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक स्ट्रीमलाइन हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा स्ट्रीमलाइन, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम वो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग जो है उन्होंने एक मैनेज वहाँ क्रिएट किया हुआ, वो भारतभूषण शर्मा और विजय चिप जो है, उन्होंने पूरा स्कैंडल इसको किया हुआ पूरे सिस्टम को। मेरे ख्याल से हमने बहुत कुछ, हम डीसी साहब के पास भी गए, यूनिफॉर्म साहब के पास भी गए, एवं कि यहाँ ऑफिस में भी हम बहुत दफा आए इस बारे में बात करने के लिए। ये बातें जो है कि पुलिस को पूरा पता चले कि उनका जो स्कैंडल जो है, जो इलेक्शंस करवाते हैं, जो अपने तौर पे वो बना देते हैं, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टरों को सप्रेस करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। और जो सिस्टम वहाँ पे चल रहा है, जो वहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ कि कोई कुछ कह नहीं पाता है, तो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो कलेक्टर्स हैं, वो भी कुछ इस जो स्थिति से नशे के इसमें आ जाते हैं, वो इन्फ्लक्स में आ जाते हैं। जब ऊपर पूरा कंट्रोल, पूरा सिस्टम सही नहीं है, वहां पे वो प्रॉब्लम आ जाती है। हम चाहते हैं कि एक सिस्टम बने, उस सिस्टम में वहां की एक जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका इलेक्शन हो, इलेक्शन तौर तरीका जैसे प्रीवियसली होता था 2 साल के बाद इलेक्शन, वैसा हो, और उस सिस्टम को फिर से ऑर्गेनाइज किया जाए जैसे पहले हो रहा था। नहीं हो रहा, तो ये आपने एक सुविधा दी है, ये जो आपने हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अप्रोच रखा हुआ, ये मैं सीनियर सिटीजन होने के नाते आपसे ये बोलना चाहूंगा कि इस सिस्टम को, सारे सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए। इसमें पुलिस का बहुत रोल है, बहुत रोल है पुलिस का रोल। अगर पुलिस अपने इसमें ले ले तो हो सकता है ये इलेक्शन भी हो सकता है और ये सिस्टम जितना भी है क्लियर भी हो जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे वहां काम करते हैं वो काम में भी उनका दिलचस्पी लगेगा और काम भी सही होगा। धन्यवाद सर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेसिडेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मिस्टर सर, एक मेरा भी, मैं फॉर्मर वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड से हूँ, जितेंद्र सिंह लकी। सर, बहुत सारी मीटिंगें हुई चौकी लेवल पे, थाना लेवल पे भी, और जब जब हमें बुलाया गया ड्रग्स के लिए काफ़ी बातें हुई। मैंने तब भी एक बात बोली थी कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, सिविल सोसाइटी अपना काम अच्छे से कर रही है, कहीं ना कहीं जो कमी है वो हमारी जेके यूटी की जुरिडिक्शन में है। क्योंकि सर, आज जितने बड़े भी ड्रग पेडलर हैं, उन्होंने जो जजेस हैं या वकील हैं, उन्होंने पे रोल पे रखे हुए हैं। और तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे अगर कहीं कहीं चिट्टा पकड़ा गया तो वो बाद में चिट्टा वो ग्लूकोज में बदल जाता है या किसी और चीज़ में। कहीं ना कहीं इसकी क्लैरिटी भी जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। एक तो सर ये था कि अगली जब भी मीटिंग हो सर, इसमें काइंडली हाई कोर्ट के या कोई भी लोअर कोर्ट के जजेस इसमें इन्वॉल्व कीजिए, एडवोकेट इन्वॉल्व कीजिए। और सर, जो जिनकी माओं के बच्चे चले गए उस ड्रग की वजह, उन मामों को भी शिनाख्त किया जाए और उनको बीच में बिठाया जाए। सर, दूसरा, आपने कानून की बात की कि आज काफ़ी सारे कानून जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। सर, मैं यहाँ जितने बैठे लोग हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि आज 307 की जगह दूसरा एक्ट जो बना है वो क्या लगा है। क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों तो क्लैरिटी दी है कि कौन कौन सा कानून जो चेंज हुआ उसकी धारा अब ये थी, अब बाद में ये हो गई है। ये अभी तक लोगों को अवेयर नहीं किया गया है। एक कैंपेन ऐसा चलाया जाए, चाहे सोशल मीडिया पे चलाया जाए, चाहे जैसे भी है, लोगों के पर्सनल टच में किया जाए कि वो लोगों को पता चले कि वो 307 की बजाय आज कौन सी धारा है। सर, तीसरा क्वेश्चन मेरा, सर, बात चली गन कल्चर और गैंगस्टर की। सर, गन कल्चर बढ़ा है पिछले 3-4 सालों में, इसकी क्या वजह रही?
खाली चिट्टा ही नहीं है सर इस चीज में इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं इस चीज में वो चीज भी इन्वॉल्व है जो आज युवा देख रहा है, जो आज युवा देख के उसको प्रमोट हो रहा है। सर उसमें आज हमें भी पता है कि कई क्रिमिनल ऐसे हैं जो चार्जशीट में आए हुए हैं, चाहे उन पे आरोप अभी पुख्ता हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पर आज उनको सिक्योरिटियां दी गई हैं, आज वो सिक्योरिटियों में घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो इवेंट करवाते हैं तो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको बढ़ चढ़ा के उसको प्रमोट करती है, और युवक उस युवा जो हमारा है वो उस चीज को देख के उससे प्रभावित हो रहा है और वो इस कल्चर में जा रहा है। तो काइंडली सर इसको रोकथाम करने के लिए सर कुछ ना कुछ किया जाए। धन्यवाद सर। एंड प्रेसिडेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सर, वी आर टेकिंग योर लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर रनिंग। यस सर। रिस्पेक्टेड सर IG Hello. Thank you, sir, for inviting us in this थाना दिवस, और स्पेशली मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि पहली बार आपने एक एग्जाम्पल सेट की है। आप थाना दिवस के ऊपर स्पेशली खुद आकर के यहाँ पर मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सभी सिविल सोसाइटी के लोगों की बातों को सुन रहे हैं। अभी की मुझे लग रहा है कि भाई जब आपने पब्लिक का थैंक्स कर दिया उसके बाद हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फाइनल वर्डिक्ट होता है। जब आपने सोसाइटी का यहाँ पर आने के लिए सबका थैंक्स किया तो यहाँ पर कार्रवाई रुकनी चाहिए, लेकिन सर यहाँ रुकी नहीं। कुछ लोगों ने जिस तरह से एक यहाँ पर रहता है, एक कल्चर रहता है, हर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बात को करना चाहता है। सर पहले तो मैं ये बता दूं, मैं अरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैंने हमेशा कोशिश की है कि किस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट के साथ और सोसाइटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशन किस तरह से बन सकते हैं, उसका प्रयास हमने किया है। और उसी का नतीजा है कि जब कभी भी बिजनेसमैन की कोई इश्यूज आते हैं, पुलिस की तरफ से कोई इश्यूज आते हैं, तो हम मिल बैठ करके उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज की टीम जो है आपकी बहुत बेस्ट टीम है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया टीम अभी तक हो सकता है कोई ऐसा समय हो जब हम लोग जो हैं सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हों, उस समय इस तरह की कोई टीम आई हो। लेकिन जिस तरह से आज आप IG साहब बैठे हैं, DIG साहब बैठे हैं, SSP साहब बैठे हैं, SP साहब बैठे हैं, 2-3 सजेशंस जो हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से आई। मैं सर अपनी बात को जल्दी बोल करके मैं विराम देना चाहूँगा अपनी बात को। देखिए, पुलिस और पब्लिक के रिलेशन ये बहुत सारे क्राइम जो हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। जब कभी भी सोसाइटी जो है उसको लगता है कि पुलिस के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो भी अवॉइड करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं सर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ चोरियां भी बढ़ी, कुछ क्राइम भी बढ़ा। आगे जिस तरह से कहा गया कि भाई पुलिस पब्लिक मीट जो है वो चलती रहती थी, चाहे थाना लेवल पे चलती थी, चाहे ऑफिसर्स लेवल पे चलती थी, कहीं ना कहीं वो उसमें कमी आई। मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सभी सोसाइटी में ये मीटिंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आज आपने नई शुरुआत की है, मुझे लगता है कि आज के बाद इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि हम लोग जो हैं बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जम्मू के जितने बिजनेसमैन हैं, मुझे लगता है कि हमारी अप्रोच जो है उनके साथ ज़्यादा है एज बनिस्बत टू पुलिस, और हम चाहते हैं कि पुलिस जो है वो हमारे साथ मिलकर के कोई प्रोग्राम्स करे, चाहे वो ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं, चाहे वो मतलब जिस तरह से चोरियां हो रही हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सर एक चीज़ जो है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आगे भी चोरियां हुआ करती थी, क्राइम हुआ करता था, ड्रग्स पहले भी था,
लेकिन शायद कम था, आज बड़ा है। लेकिन आगे क्या होता था कि जब भी कोई चोरी होती थी तो इमीडिएट एक्शन होता था और बंदे पकड़े जाते थे। आज हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं सर दो चीज़ों पे। एक तो कैमरा जरूर होना चाहिए, बिना कैमरे के पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, और मोबाइल वो ऑन होना चाहिए, वो स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। सर इन्फॉर्मर्स आगे भी होते थे, उन लोगों की हमेशा हेल्प ली जाती थी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कि किस तरह से हम लोग इस क्राइम को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो हैं वो चोरियां कम कर सकते हैं। उसके ऊपर सर एक डिबेट की ज़रूरत है। मैं इस समय ज़्यादा ना बोलते हुए मैं चाहूँगा कि इसके लिए अगर आपकी तरफ से अगर पहल होगी, हम चैम्बर में एक प्रोग्राम करना चाहेंगे, अच्छे लेवल पे प्रोग्राम करना चाहेंगे। बिजनेसमैन जो हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सबको बुला करके ऐसा प्रोग्राम करके उनको भी आप गाइड करिए, और खुद भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आज एक दूरी जो है वो उसको कम करने की ज़रूरत है। ये मेरी तरफ से शिकायत नहीं है सर, एक सुजेशन है कि भाई हम लोग जो है मिलकर के काम करें, और मुझे लगता है उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। और जिस तरह से आज आपने पहल की है उसके लिए अब फिर एक बार सिविल सोसाइटी की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आप सबको मुबारक और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा अपने ऑफिसर्स और जवानों के अच्छे काम को एनकरेज किया है, अप्रिशिएट किया है। आज भी कुछ अवार्ड्स हैं जो अनाउंस किए जाएंगे। टाइम की किल्लत की वजह से ऑफिसर्स को यहाँ इस वक्त बुलाया नहीं जाएगा। वी आर जस्ट अनाउंसिंग द अवार्ड्स, और उनको बाद में मोमेंटोज और सर्टिफिकेट्स से नवाजा जाएगा। एसएचओ इंस्पेक्टर जेपी सिंह, एसएचओ सतवारी पुलिस स्टेशन, इन्होंने पहली EFIR लॉन्च की, इसके लिए इनको अवार्ड किया जाएगा। SDPO ईस्ट मिस्टर शीजान भट्ट, इन्होंने पहली 0 FIR जो है वो रजिस्टर की, इसके लिए ही इज़ बीइंग रिवॉर्डेड। SHO गांधीनगर मिस्टर अरुण शर्मा इंस्पेक्टर, इन्होंने एक थेफ्ट केस 30 तोला गोल्ड विद इन 16 डेज सॉल्व किया है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इंस्पेक्टर आरती ठाकुर एंड वुमेन कांस्टेबल देवी राधा देवी, जो कि SHO वुमेन SL हैं, इनके अच्छे काम के लिए इनको रिवार्ड दिया जा रहा है। PSI जुल्फकार अहमद, ये गांधीनगर पुलिस स्टेशन के हैं, ही हैज़ वर्कड ऑन ई-साक्ष्य, इनको इसके लिए रिवार्ड किया जाएगा। और PSI धनराज और कांस्टेबल विशाल शर्मा, इन्होंने इफेक्टिवली काम किया है MV थेफ्ट पे, मोटर व्हीकल्स थेफ्ट, और 125 मोबाइल फोन्स जो चोरी हुए थे उनको इन्होंने रिकवर किया है। फॉर ऑल दैट दे विल बी रिवॉर्डेड। And now I will request the DIG JKS Range, Shri Shiv Kumar ji, to please come on the dais to present his vote of thanks. मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, DGP साहब की तरफ से, IGP जम्मू जोन, सभी हमारी पुलिस टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आज इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। और मैं सर DG साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि सर अपने बिजी शेड्यूल से आज गांधीनगर थाना चुना, और ये जम्मू सिटी जो है, ये जम्मू का सबसे बड़ा थाना है गांधीनगर, जिसको मॉडल पुलिस स्टेशन भी कहा जाता है। और यहाँ की सर्विसेज बहुत सारी जो है ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जिसमें टेनेंट वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, CID वेरिफिकेशन जितनी भी होती हैं, सभी मैक्सिमम सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन हैं। और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो सब काफ़ी सारे जो हैं वो इंटेलिजेंट लोग हैं, और काफ़ी इसमें फॉरेन अटर्नी हैं जो बाहर से एक्सपोजर लेके आए हैं। और जब हम इनसे बात करते हैं तो कई बार हमें इनसे सीखने को मिलता है कि बाहर की जो लंदन की पुलिसिंग है, USA की जो पुलिसिंग है, वहाँ क्या क्या एक्शन होते हैं, कैसे वो एक्ट करती है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करती है। तो ये इस लेवल का जब एक्सपोजर सिटीज़न को होता है तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें भी अपग्रेड होना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिलजुल कर सोसाइटी को इवॉल्व करेंगे और चेंजेस लाएंगे। जो चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई हैं मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा। तो हम पूरी टीम की तरफ से मैं आपको पूरे जम्मू कठुआ रेंज सांबा की तरफ से सब आपको एश्योर करता हूँ कि जो भी डायरेक्शन DG साहब की तरफ से दी गई हैं सर, उनको हम ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करेंगे और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने की सिटीजन्स को पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
धन्यवाद सर, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि हमारे जितने भी आज के विनर्स हैं पुलिस फोर्स की तरफ से, एसएचओ सतवारी, इंस्पेक्टर जेपी सिंह, श्रीजान भट्ट साहब एसडीपीओ ईस्ट, एसएचओ गांधीनगर अरुण शर्मा जी, इंस्पेक्टर आरती ठाकुर एसएचओ विमेंस सेल, राधा देवी जी, पीएसआई जुल्फिकार साहब, अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं प्लीज जल्दी से एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए स्टेज पर आ जाएं, मंच पे आ जाएं। पीएसआई धनराज सर, कांस्टेबल विशाल शर्मा सर, वी वुड रिक्वेस्ट यू फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ विद ऑल दीज विनर्स। दो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम लोग ऑफ कोर्स आज मेमेंटो इन्हें नहीं दे पा रहे हैं, बट दिस इज, और मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से इन सबके लिए हौसला अफजाई के तौर पर तालियां तो जरूर चाहूंगी। So congratulations. हम सबका आपको तहे दिल से धन्यवाद एक बार फिर, आपसे फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत। इन शॉर्ट, सिर्फ एक शॉर्ट, अगर वो बोलना चाहे तो,